ویلکم بیک آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. خوش آمدید آپ سب کو K2 میلہ میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور الہدیٰ عارف, اور میرے ساتھ ہیں آج کچھ نئے فیسز, کچھ پرانے فیسز, لیکن ہم لوگ پرانا کسے بولا, نیا کسے بولا. چلیں انٹروڈکشن ہی کر لیتے ہیں, آپ لوگ خود دیکھ لیجئے گا. Again, we're back on K2 Mela. So we're back on K2 Mela. Yes, Peshawar Center is back on K2 Mela. So I would like to start off with the introduction. ادھر سے آتے ہیں پرانے ترین سے. پرانے ترین. ہیلو ایوری ون. یہ ہے معیز الدین محمد. کیا سی Like یہ انٹرو تو محیط صاحب کا اس نے بول دیا حق ہے, بس ہے بس یار. انٹرو میں کر رہا تھا. یہ ہے محیط الدین محمد. آپ نے دیکھتے رہے K2 میلے میں ان کے اور بہت سے پروگرام K2 میں خاص طور پہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اور کیوں پسند کرتے ہیں؟ آپ کا انٹروڈکشن کون کرے گا؟ میں اپنی طرف آتا ہوں نا, مجھ کو ڈبل لوڈ ہوتا ہے نا, مجھے اسے بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہی از اے ویری گڈ سنگر. لوگ سنگنگ بہت پسند کرتے ہیں, اسپیشلی ان کی مزے مزے کی باتیں جو کہ انہیں بھی نہیں پتا ہوتا ہے. تو میں جس نے کچھ کھلایا پلایا کیا سین ہے؟ کیا کچھ کھلایا پلایا؟ کچھ نہیں کھلایا, اتنی اس لیے پیاری کرو کیا پیاری پتا کچھ باتیں, کھلا لے. اتنی پیاری پیاری باتیں اس کے بارے میں. یہ صرف آن اسکرین ہے, آف اسکرین اس کو میرا اپنا چلتا رہتا ہے. اچھا, میری طرف آتے, میں عثمان امین دورانی, اور میں کسی تعارف کا کیا کہتے ہیں اسے محتاج نہیں ہوں. آپ مجھے ویسے ہی جانتے ہیں سارے, تو یو نو. ہاں یہ عثمان امین, the reason that this whole program is, you know, well knit together, اور یہاں پہ عجیب قسم کے لیپسز نہیں ہوتے, اور پروگرام 2 گھنٹے اینڈ تک سیدھی طریقے سے پہنچ جاتا ہوتا ہے. عجیب قسم سے لیپسز نہیں ہوتے. کیا مطلب ہے؟ مجھے جو بھول جاتا ہوتا ہے بریک سے واپس آنا یا بریک میں جانا, تو وہ تم ہینڈل کرتے ہوتے ویسے جسٹ آسکنگ, نہیں ہوتے لیپسز؟ ہوتے ہیں, لیکن تمہاری وجہ سے کنٹرول ہو جاتے ہیں نا. اوکے اوکے. اگر اس کو کسی نے بول دیا کہ تم 50 باتیں کرو, تمہارے لیے 5 کروڑ انعام ہے, یہ وہ انعام ہار جائے گی. نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے اگر یہ بات میں کروں پھر بھی کوئی وزن لگتی ہے. تم یہ بات کیسے کر رہے ہو؟ میں تو اس سے اچھا ہوں نا. تم اس سے اچھے نہیں ہو. 75 باتیں آتی ہیں مجھے. اچھا, ہم ایسا کرتے ہیں خیران سے نکل آتے ہیں, یہ ہمارا وہ والا سین ہوتا ہے نا. تو اس طرف آتے ہیں. We've got a youngest member on K2 جو ہماری ہوسٹ ہیں. Oh my God, look at that smile on her face. Thank you. I mean, یہ ہمیں بولنا چاہیے تھا. thank you for having me. بھول گیا نا تم لوگ, تو آپس میں پھنسے ہوئے تھے نا. اب اسے بولنے دو بیچاری کو. Yes. جی. So, I still can't believe کہ میرا almost 1 سال ہو گیا K2 کی فیملی کے I ساتھ. swear, same I here. mean, it feels like it was just yesterday when I started. اور اتنا کچھ سیکھنے کو ملا, اور میری جو پوری جرنی تھی, I'm so excited to share that with everyone. So thank you for having me. You've got all the time and we'd really like it. اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا elaborate کرو how your journey etc was like, but for that we'll come back. Then we've got our favorite Hassan Ali Shah صاحب. Especially نور بہت بڑی فین ہے ان کی. Yes. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ. K2 میلہ میں دوسری بار شرکت کر رہا ہوں, خوشی ہوتی ہے. آپ جیسے جو نیو ٹیلنٹ ہیں, اور میں بھی شو سے پہلے میں ردا کو یہی کہہ رہا تھا, آپ کو بھی, کہ بڑے شارٹ ٹائم میں ردا نے اپنی جگہ بنائی ہے. اور ایک اینکر کے لیے جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے نا, وہ اس کی کامیابی کا بنیادی ذریعہ ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ ردا نے بڑے کم عرصے. نور میری طرف غور سے دیکھ رہی ہے, وہ کہہ رہی میرے بارے میں. آج نور کے بارے میں کوئی کچھ بول ہی نہیں. نور کے بارے میں تو یہ کہ فرسٹ ٹائم جب یہ پلے میں کام کر رہی تھی, عثمان امین صاحب کا بھی ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر پہلا ایکسپیرینس تھا. تو جب ان کی شوٹنگ ہو رہی تھی حیدرآباد کے, وہ اس میں یہ ٹراما سینٹر میں, تو ان کا ایک سین تھا بڑا ایموشنل تھا نا. تو میں وہ دیکھ رہا تھا, تو میں نے ان کو کہا, جب سین اوکے ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے کبھی کسی ڈرامے میں کام کیا, تو اس نے بڑی, جس طرح اس کا سٹائل ہے تو مجھے اس طرح کہتی. تو میں نے کہا ماشاءاللہ پہلی مرتبہ کام کر رہی ہو اور اتنا اچھا کام کیا. اور واقعی کہ وہ ہوتا ہے نا, ٹیلنٹ انسان کے اندر تو ہوتا ہے نا, لیکن وہ کہتے ہیں نا اس کو پالش کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا پالش بھی ہوا ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, تو دونوں چیزیں بیک وقت ٹھیک ٹھاک آ گئی. سر وہ اپنے گھر میں بہت زیادہ ڈرامے کر چکی ہے, تو ایکسپیرینس ہے. یہ آپ نے بہت ہی بڑا جو ہے نا میرے اوپر وہ تہمت ہوتی ہے نا, وہ والا سین لگایا ہے. اچھا, اور we've got one more guest with us and that is جو کہ آج بہت ایک بولڈ سٹیٹمنٹ انہوں نے
की हुई है, राइट? उनकी एंड इट अभी टेक्स अ तक लॉट ऑफ स्लीव खत्म नहीं कॉन्फिडेंस हुई। एक मर्द को कि वो एक फ्लोरल शर्ट पहने, तो लाइक नहीं पॉजिटिवली कह रहा हूँ। Please do तो not kudos, generalize yeah. that. Thank you ये so much उनकी for अभी that. तक ईद खत्म नहीं हुई। ईद खत्म नहीं, sorry I didn't get you. Come again. ईद खत्म नहीं हुई ईद आपकी। खत्म नहीं है तो ये ईद पे इस तरह के मर्द ऐसे मर्द हजरात ऐसे कैसे हो आप अहमद? खुशी का मौका पर। Thank you so much, Usman, for that lovely compliment. Firstly, It is a compliment. I know, bro. Of It's course, a it's a lovely compliment. shirt. Even if it's not a compliment. We'll discuss that in the break. Excuse us. उसके बाद नूर आपने जो मुझे बोला ईद जी बस खत्म हो ही गई है किसी हद तक. Finally. मेरी अभी तक शुरू नहीं हुई. Feels good to be back at K2 Mela. You know, I feel like, you know, I'm getting used to all this. Like, I'm down for this every weekend now. Kissing Moise. You know how it is, right? No, I'm getting used to it now. Like a K2 family, tasu khoiche, zamung guest ko tasu उर्दू का chikkala. शो है. आपने जो मुझे शुरू में बोला ना कि हमारा गेस्ट है ये, तो मुझे यू नो थोड़ा सा मुझे awkward अजीब सा लगा लगा ना, yes. कि मैं इस शो को इतना अरसा मैं होस्ट करना पे तो उन्होंने जब मैं आके बैठ मैंने कहते ने कि वो हाँ ना वैसे मेजबान है, हमने जिला में ब्लूपर मार दी है तो बड़ा अरसा ये मेजबान तो तुसी मैंने मेहमान बना छोड़े है नीचे. तो मेहमान तो बनाया है मार मैंने। देता है. जो बोली थी अभी आपको माइक उधर लगा हुआ ना, मैं आपकी जगह चेंज कर देता. हाँ आज मैं गेस्ट हो जाऊं यार, क्योंकि बुरी बात तो नहीं है ना? तो अब है तो ना, लाइक आई सेड, इन चीज़ों को हम लोग बाद में आराम से ब्रेक में डिस्कस करेंगे. आई मीन जो फॉर्मेलिटीज है दोज असाइड, छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, देन विल कम राइट बैक. हम सबको एक स्क्रीन में एक टाइम पे फिर से देखकर आप लोगों का टाइम ज़ाया करते हुए आज का जो हमारा मैं बीच में एक इंसर्शन मार लूं. जी 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 जब भी नूर ओपनिंग करती है ना, ठीक है, कहती वेलकम बैक व्यूअर्स, मुझे हमेशा लगता है यार ये भूल गई कौन से शो में हूं मैं. अब हमेशा ये लगता है भूल गई कौन से शो में हूं मैं बोलने वाला तो ये वाला शो है. लाइक अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब देख रहे हैं खबरें. यू हो जाती है ना कि खबरों पे मैं अभी तक नहीं आई. खबरों पे मैं अभी खबरों तक का नहीं आई. वैसे गुड आइडिया. अल्लाह का बंदा वास्ता. इसको स्क्रिप्टेड कर रहे. है ना, टेलीप्रॉम्प्टर को भी खबर अगर- स्क्रिप्टेड ही होती है, वो प्रॉम्प्टर पे होता है. नहीं इसको शाह जी, बंदा आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? शादी वैसे नहीं ट्राई करनी चाहिए ना, यू शुड हैव एक्सपीरियंस, न्यूज़ होनी हाँ. चाहिए, खबर. If Kamran sir is Oh, watching this, yeah. I beg him not to. सर जी कर बहुत सकती है. यस सर, मैं आपके साथ हूँ. If Kamran sir is watching this, please, I beg you, do not अभी तो बच्ची हो गई है. listen to this. सर जी बस ये आइडिया मेरा है ऐसे. अच्छा, अच्छा सॉरी, प्लीज आप बता रही थी आज की शो के बारे में. today I've thought about something. एक बहुत ही एक स्पेसिफिक इमेज हम सब की बनी होती है ऑन स्क्रीन. जो भी हमें देख रहा होता है, जो भी ये शोज वगैरह देख रहा होता है, उनके जहन में, उनके दिमाग में एक स्पेसिफिक हम सब की एक इमेज बनी होती है. अब मोइज जैसा बंदा जो कि सूफी कलाम पेश करते हैं, ही हैज़ दिस वेरी स्पेसिफिक स्टाइल, और उन चीज़ों मजाक उड़ाते रहो बस, ठीक है यार. I mean, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है. कहते- मैं इसी पेश चीज करता की हूँ बात मैं. करी थी. मैं स्पेसिफिकली इसी दोस्ती चीज हो की गई बात, हमारी. हाँ, कंटिन्यू प्लीज. इसी चीज के बारे में मैं बात कर रही थी कि आई मीन ऑन स्क्रीन आपको लोग एक तरीके से जानते हैं, ऑफ स्क्रीन चूंकि हम सब फ्रेंड्स भी हैं, हम एक दूसरे को डिफरेंट तरीके से जानते हैं. व्हाट इज इट दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस? ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो जो कि उनको नहीं पता आपके बारे में? Should I go first, Noor? यस. I'm sorry, I can't. You know, like आपने इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि you want me to उस्मान के बारे में, मुइस के बारे में, मैं इस तरह की बात करूँ. हमारे बारे में नहीं, मैं तो उस्मान और मुइस के बारे में. पहले राउंड This में goes- अपने बारे में, This फिर goes दूसरे as a बारे hot seat. This goes as a hot seat. What I want is कि कुछ आप अपने बारे में बताओ और कुछ हम आपके बारे में बताएंगे. में. अच्छा, all of उधर you. से स्टार्ट करते हैं उधर से स्टार्ट करते हैं. उसने मांग ली बारी. मेहमानों से. मेरे बारे में. अपने बारे में You बताओ. talk about yourself and then you talk about us too. Like Um, we talk about you. If I start talking about myself, वो इस तरह थोड़ा सा brag हो जाएगा. I won't do that. I talk about Moise. Rather talk about Moise. You know. तारीफ मत करो ना. नहीं, मैं करना ही नहीं चाहता ना. उसके अलावा तो you know, I don't see बता दो अपने बारे में. you know flawless Usman. You know, I don't see any flaws in me. Come on, you know how it is. I'll talk about Moise. ठीक है. ठीक है. नहीं Moise, मैं you're my मोइज producer. दुनिया यार आप सुन मेरे रही है, अपने producer कान हो. बंद से तनु मैं खफा कर छोड़े थे. मैं क्या कर सकता Moise? मेरा तो तू ही अपनी सहारा है इस चैनल जान. कट न रहती.
Moise is a really generous and really true guy when it comes to. तारीफें Come नहीं, on, I sorry. have to say that. second, यार, I have बुरी to बुरी बातें appreciate यार whatever मेरी किस्मत whatever it में is. तारीफ है। Because me and Moise, मेरा जिसके साथ बॉन्ड शुरू दिन से बना था चैनल में, I don't think so कि इसने वो बॉन्ड किसी और के साथ कैरी किया होगा, क्योंकि मैंने और Moise ने before he started working in this channel, I got to meet him first when he was not on, he never came on screen. तो तब जिस तरह ये मेरे साथ अच्छा, था, I yes. thought आप लोग जब ऑन स्क्रीन इकट्ठे आए थे तब से आप लोग की दोस्ती इसको मैंने बनी है। फीचर किया था, he got featured in my show first. Yeah, He had right, that okay. super legendary Yes. bike that he still owns. इसके पास एक Granny. Granny, yeah, Granny. इसको It's तो called a granny. yeah. हाँ, दूसरी बात जो थी वो ये बाइक थी का नाम कि ग्रैनी है। मैंने रखा है उसको। और फिर Moise पे मैंने प्यार से इसको हम Granny कहते हैं। अभी वो सारे मुझे बोलते हैं ग्रैंड। कुछ हम selected friends हैं जिनको ये बात पता है, तो हम हाँ। Moise अच्छा, को प्यार से। तो आप इसकी कुछ हमें नेगेटिव बता रहे थे कुछ। नेगेटिव बात ये है कि once he goes to once he's in bed, एक दफा Moise सो जाए ना, उसके बाद Moise को उठाना इस दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। इसको फिर सिर्फ ऊपर वाला जो है वही जगा उठा सकता है, सकता उठा सकता है। अगर ना करे यार मेरा भाई ऐसी का। लेकिन once Moise is down bed, उसके बाद phones, no phone contact, no nothing. It's bedtime. ट्रस्ट मी, It's आई नो। bedtime. It's मैंने बहुत bedtime. फ्रस्ट्रेटेड घंटे गुजारे हो मुझे कॉल कर करके। Yeah, you guys know better. आप लोग ज़्यादा पता होगा। आप This is लोग- very funny because I know I am a similar case. मुझे सिर्फ अपनी माँ की आवाज उठा सकती है, वो हो सकता है मुझे कब्र में भी उठा ले। यार एक काम करो, That is the kind of नूर Crazy. प्लीज एक काम करो, आंटी की आवाज रिकॉर्ड करो, वो तुम्हें बोलो कि नूर बेटा उठो और वो मेरे रिंगटोन के तौर पे रखो, ठीक है? कि जब मैं तुम्हें कॉल करूं एटलीस्ट तुम उठ जाया That's करो a good उससे। idea. actually. मैं उठती हूँ। अच्छा, और मैं इस किस्म की हूँ कि किसी और का भी अलार्म बज रहा होगा तो I wake up and I have to turn that off. You did I'm that such a to me. light sleeper. You I'm did that to me. I did that to you? I did that to you in, I guess in Yes, my Swat, phone was right? Yeah. at a distance. She heard my alarm and she's like, Noor, Noor. Exactly. I'm No. such a light sleeper. अच्छा, Yeah. अहमद आगे भी लोग रहते हैं तो शाबाश तुम्हारे बारे अच्छा, में तो जो बात मैंने Moise के बारे में की है ना, चलो उसको तो फिर भी यानी नूर ने भी बीच में थोड़ा सा पेशन किया कि मेरा जिस तरह होता है, मुझे उसकी उन्होंने अपने कहा कि आपको आपकी अम्मी की आवाज़ जो है उठा देती है, राइट? बट व्हेन इट कम्स टू मी, मुझे कोई आवाज़ ही नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है अगर आवाज़ दे दी तो थिंग्स आर गोना गेट वर्स। तो मैं जब सो जाता हूँ तो फिर फ़ोन, आवाज़, नथिंग। जब तक मेरी नींद पूरी होती है, इवन माय फ्रेंड्स नो, उनको पता है कि अहमद सोया है, बस सोया है, ये नहीं उठेगा अभी। जब ये खुद उठेगा, ये खुद को सबको कांटेक्ट कर लेगा। तो Moise की तो नींद थी मगर Moise की और मेरी जो है एक नींद में दोनों में ही सिमिलरिटीज है। once we're sleeping, once we're asleep, there's no way of getting us up then. ओके नाइस। हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। ऑन स्क्रीन लोगों को आपके टैलेंट्स का, आपके काम का पता है, ऑफ स्क्रीन थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइए जो कि व्यूअर्स के लिए कुछ नई चीजों। आपकी क्या रूटीन क्या होती है ऑफिस के अलावा, क्या करते हो आप? रूटीन मेरी ये होती है कि मैं घर में जब होता हूँ टेलीविजन तो मैं बिल्कुल नहीं देखता। अच्छा, राइट कोई बुक्स वगैरह पढ़ लेता हूँ, राइट। और क्योंकि सब कुछ सीखा ही किताबों से। आपकी बहुत प्यारी कलेक्शन, ऑफिस में तो आपकी बुक्स की कलेक्शन मैंने जी, देखी तो हुई है। ये टेलीविजन पे मैं जितना बोलता हूँ, मतलब जितनी मालूमात हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ, ये सब मैंने किताबों से हेल्प ली है, और किताबें मेरी टीचर्स भी हैं और उन्होंने मुझे सिखाया। जबरदस्त। बाद औक़ात मुझे लोग कहते हैं कि यार आप शोबिज़ में आए हो, एक्टिंग भी की है, सिंगिंग भी की है, ड्रामे भी लिखे हैं, सीरियल भी लिखे हैं, खुसूसी प्ले भी लिखे हैं, और कौन सा काम रह गया? मैंने कहा यार इस तरह के बाद लोग सीवी में लिखते हैं ना कि ये भी, तो मैंने कहा मैं अब सीवी में नहीं लिखता। K2 पे मैंने जितना काम किए, खैबर न्यूज़ पे जितना काम किए, और AVT खैबर पे जितना काम किए, वो सामने वेबसाइट The पे work भी है। now speaks for तो itself. ज्यादातर मेरा टाइम घर में किताब से मुझे बस लगा हुआ है, किताबों से। सर मुझे एक और चीज बताएं, ये आपका एक तरीका भी हम कह सकते हैं ना, एक डीक्लटर करने का, थोड़ा सा डिस्टेंस करने का अपने आप को बाकी चीजों से, जी। सो यू कैन हैव सम मेंटल पीस एट द एंड ऑफ द डे। कुछ सुकून मिल जाता है आपको इससे, आप अपनी एक दुनिया में चले जाते हैं ना हाँ, इससे? सुकून मुझे दो चीजों से मिलता है। एक, नींद मेरी पूरी हो, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी होगी तो फिर मुझे पता है कि दफ्तर में मैंने क्या क्या काम आज करने हैं। उसके लिए नींद पूरी करता हूँ हर हाल में। दूसरा ये है कि मैं जिस घर में भी रहता हूँ, मसलन रेंट पे ही रहता हूँ, राइट। और ये लोग टेलीविजन पे हमें देखते हैं कि ओ जी ये तो
इसके पास तो ये होगा वो होगा ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। बस हमारे पास अपना टैलेंट है और तंदुरुस्ती है, ये सबसे बड़ी दौलत है। और सब्जी बड़ा दिल है आपके पास। बच्चे फर्माबरदार हैं, बच्चे फर्माबरदार हैं, किसी के आप कर्जदार नहीं है, घर किराए का ना झोंपड़ी का हो, इससे बड़ा सुकून और क्या होगा। और मेरी कामयाबी का एक राज भी है, मैं जिस घर में भी जाता हूँ किराए के घर में, सबसे पहले उसके गेट पे मैं रखता हूँ एक वो मिट्टी की, वो उसको सानक कहते हैं, सानक, जिसमें वो पेंडा मेंढा भी लोग खाते हैं, अच्छा, वो मैं रखता हूँ। right, और right, साल के 12 महीने बाजरा में उसमें डालता हूँ चिड़ियों का, चिड़ियों के लिए, और उसके yes, साथ ये पानी बहुत शौक का पानी काम है। भी रखता हूँ। रात को सोने से पहले बच्चों को भी ये बताया हुआ है कि सोने से पहले भाई इसके अंदर बाजरा जरूर डालना है। अच्छा, क्योंकि गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, उनको पता है कि यहाँ पे जो है ना मेरी खुराक, मेरा रिस्क यहाँ पे पड़ा हुआ। तो इससे ये सारी मेरी जो कामयाबी का राज है, जो मैं पुरसकून हूँ इस नफ्सी के दौर में, एक वजह ये भी। अच्छा, टॉकिंग अबाउट बर्ड्स और उनका वो, ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर मुझे रफ आइडिया है कि आगे क्या, अभी जब मैं आगे क्वेश्चन पूछूं क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन मैं व्यूअर्स को हो सकता है नहीं, कुछ थोड़ा बहुत प्रोग्राम में डिस्कस हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को फिर भी नहीं पता होगा। रिदा, आप बताइए कि आप ऑफ स्क्रीन एज इन इधर आपके जो प्रोग्राम होता है केपीज ब्लॉग, जो बहुत ज्यादा लोग बहुत शौक से देखते हैं, उसके अलावा अपनी रूटीन, अपनी हॉबीज, अपने कुछ शौक के बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं। अच्छा, so there's a lot that I do. I'm a very fun-loving person. मुझे फारिग बैठना बिल्कुल नहीं पसंद, तो अगर मैं फारिग हूँ कुछ अरसा तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि नहीं मैंने कुछ करना है, I have to keep myself busy. अगर कुछ नहीं है तो मैंने ट्रैवल करना है. So there's one thing that I absolutely love, और I love traveling. तो मैं कभी पेशावर में होती हूँ, कभी कहाँ होती हूँ, कभी कहाँ, and I'm always traveling. I'm everywhere. और दूसरा ये कि when I'm at home and when I want to come back home and to that peace of mind, you know, तो वो मेरी बिल्लियाँ सबसे पहले मैं अभी वो जो आपने चिड़ियों की बात की, मुझे जानवरों से इतना प्यार है कि मैं आई डोंट नो, आई कैन नॉट रेजिस्ट बट टॉक अबाउट देम ऑल द टाइम. आई डू दैट ऑल द टाइम. केपीज ब्लॉग में मैंने इतनी बातें की हुई, बट बी इट स्ट्रे डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, it just gives me a lot of peace to feed them, to spend time with them. तो कुछ भी नहीं है करने को, I just go out and sit and I'm just playing with them and talking to them and it's just होता ये है कि आप जब किसी जानवर के साथ टाइम गुजारो बनिस्बत इसके कि किसी इंसान के साथ टाइम गुजारो, मैं बहुत ही साफ अल्फाज में बोलूँगी, बनिस्बत इसके कि आप किसी इंसान के साथ टाइम गुजारो, तो मैं देखिए कह रही हूँ आपको जो पीस ऑफ माइंड मिलता है कि ये बंदा मुझे ये जो जानदार है ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ऑल इट वांट्स जानवर से भी। यार माफ कर दो ना इसको, थोड़ा 2 मिनट छोड़ दो, इसके बाद मेरा ना उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगी. हाँ, तो उसमें होता ये कि आई मीन यू हैव दिस द फॉर्म ऑफ लव व्हिच इज नॉट आस्किंग फॉर समथिंग इन रिटर्न. इट्स नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग. सो आई फूड, या जस्ट और किडिंग, असूलन आप उसका वसीला बने हुए होते हो रिज़्क का, तो आई मीन यू शुडंट टेक इट अपॉन योरसेल्फ कि आप उसको कुछ दे रहे हो, आप ये समझो कि आप वसीला बने हुए हो किसी बेजुबान की रिज़्क का. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग. एग्जैक्टली. और इफ समवन इज गोइंग थ्रू एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज तो उन्हें रिकमेंड किया जाता है कि आप या बिल्ली या कोई पेट रखें, बिकॉज इट हेल्प्स सूथ्स योर माइंड. सो इट्स वेरी रिलैक्सिंग एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक एन एंटी डिप्रेसेंट. यू स्पेंडिंग टाइम विद पेट्स एंड विद एनिमल्स अराउंड यू. मुझे एक दफा आई वाज ड्राइविंग इन हैदराबाद और मुझे रोड के बीच में एक बिल्ली बैठी हुई थी, ऊपर से गाड़ियां गुजर रही थी, मैंने साइड पे रोका, जल्दी से मैंने गाड़ियां रोक के साइड पे किया, तो हम वो छोटी सी किटन, उसका मुंह से थोड़ा सा खून लगा हुआ था, तो मेरा ख्याल हल्की सी लगी थी, बाकी ठीक लग रही थी, ज़ाहिर लगी शॉक में थी, तो मुझे समझ नहीं थी मैं क्या करूं. एकदम वो रिदा को पता होती क्या करना है, मैंने तो रिदा क्या करूं बिल्ली का, ठीक है. फिर उन्होंने मेरे ख्याल में किसी डॉक्टर को बताया कि उधर जाके उन्हें चेकअप कर लिया था. लेकिन फिर हमारे एक और दोस्त है, मैं पाल नहीं सकता था, मेरी अम्मी मुझे बहुत पसंद है, मेरी अम्मी बहुत अगेंस्ट है बिल्लियों के. मैंने हमारा एक और फ्रेंड है उसे दे दी, ठीक है. उससे भी कुछ अरसा वो नहीं हो सकी ना, तो यू नो द कैट एंडेड अप विद द डॉग. इवेंचुअली वो फिर इन्हें मिल गई, आपके पास आ गई. यस, और आपने बताया था कि वो बड़ी डरी होती थी, खाना खा के बिल्कुल, but now she's completely fine. Okay, अच्छा, she's still there. Yes, of course. Nice. So I have approximately 4 strays at home. इधर उधर से घूम फिर के लोगों के पास से होके आके फिर वो मेरे घर पे लैंड करते हैं. वो इसलिए क्योंकि लोग संभाल ही नहीं सकते. 10,000 रुपए दे के बिल्ली लेना जरूरी है, उसकी फोटोज लगाना जरूरी है, और उसके बाद जो है उसकी केयर नहीं हो सकती.
اس کی خوراک پوری نہیں ہو سکتی, اس کی جو گرومنگ ہے وہ نہیں ہو سکتی, and eventually they're like نور کدھر ہے. That's what I like about cats actually. Cats ٹھیک ہے ہلکا پھلکا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن باقی انہیں واک پہ نہیں لے کے جانا ہوتا ہے, باقی یہ نہیں کرنا ہوتا, باقی وہ اپنا خیال رکھتے ہیں تم اپنے کام سے کام رکھو مجھے چھوڑ دو بھی کیا کہتے ہیں. ڈاگز آر ڈفرنٹ, کتوں کا بہت زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے. احمد کے پاس آئی بلیو یو ہیو کوائٹ اے فیو ڈاگس, تمہارے کزنس کے پاس خاص طور میں دیکھے وہ خیر وہ کزن کے پاس جو کتے نہیں ہے وہ کوئی شیر ہے پراؤڈلی. عجیب و غریب سے ان پہ ایک شو بھی ہم نے ایک دفعہ کیا نا, وہ ماسو کوئی اتنے اتنے ہیں Caucasian ٹھیک ہے shepherds. No, Caucasian shepherds. ہے کچھ بڑی عجیب و غریب سے بتا ہے, کتے نہیں ہیں اتنا مجھے پتا ہے, وہ کتے سے کچھ یار زیادہ وہ کتے ہی ہیں, اگر وہ shepherd ہے تو بھالو اور شیر کے بیچ میں کوئی کراس نہیں ہے. عثمان جو بات کر رہا ہے لائک آپ کو میں آپ نے دیکھے بھی نہیں ہے نا, تو جب آپ دیکھ لو گی انہیں so then you'll have an idea کہ what Usman is exactly saying. But they're dogs, yeah. They are dogs maybe. لیکن میرا فرینڈس کہتے ہیں کہ تمہارا تو ایکسٹریم کیس ہے, because a friend of mine, he was just randomly talking about how much he's scared of lizards. تو میں نے کہا why, I mean they're so cute. And Actually yes they are. yeah, I know, and people don't get it. میرے پاس ایک پیٹ سنیک ہوتا تھا پہلے, میں نے ایک سانپ پالا تھا. Yes. Yeah, that's how they react. Really? Exactly. کیا That's Lizard exactly how چھپکلی they react. وہ والی دیوار والی نہیں, وہ ہوتی ہے نا کچھ صحیح a چھپکلیاں. lizard and it was Samsara. friends with me for a while. Samsara, no, that's a Komodo dragon. Komodo dragon نہیں, Komodo dragon کچھ کر سکتا. Anyway, Komodo dragon نہیں, that's a salamander that you're talking No, about. میں نے ایک سانپ پالا تھا. Samsara is not a Samsara is a salamander. it's not a salamander. It's Salamander the is smaller like chipkali. salamander is like, you know, not that big. Samsara We is need to Google this. Somebody has to Google this right now. Anyway, میں نے بہت چھپکے سے ایک دفعہ سانپ پالا تھا. رائٹ مجھے بہت پسند ہے, تو ایک ہفتہ میں نے چھپ کے پالا تھا, پھر میرے کو پتا چل گیا تھا کہ سانپ ہے. تو عثمان ابھی جو بیٹھی تھی ساتھ دن کہتی ہے باہر چھوڑ کر آؤ, تو پھر میں باہر جا کے پتہ نہیں آیا I کہ باہر can چھوڑ کر almost mentally picture Usman's mother. Actually yes, you're quite accurate. اسی کچھ ایکسپریشنز تھے, چھوٹا سا تھا بڑا مزے کا. Anyway, رضا بھائی آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے. لوگ کہتے ہیں نا اگر آپ ایک انسان کو تب تک نہیں جانتے جب تک آپ نے اس کا ٹریول نہ کیا ہو, بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے نور کے ساتھ ٹریول کیا ہوا ہے, بالکل ٹھیک ہے, exactly. اس کے بارے میں ہمیں آپ کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو کہ ہمارے ویورز کو ہمیں نہیں پتا. اس کی کچھ عادتیں اچھی والی نہیں پلیز, اچھی باتیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں ساری نیگیٹو باتیں پتہ چاہیے. اچھا نیگیٹو میں نے کچھ ہی نوٹ کیا, مطلب وہ ایسا نہیں ہے کہ I'm trying to be نہیں nice کر or لوں ہر ایک something. چیز. نہیں آپ اتنی پازیٹیو کیوں ہو یار؟ پازیٹیو نہیں, میں نے مطلب اتنا میں پازیٹیو ایک بات بتاتی ہوں جو کہ میں شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی نور سے, کیونکہ میں خود جب میں ٹریول کرتی ہوں, ناٹ اے ویری آرگنائزڈ پرسن, تو بیک ہوم آئی نو وین آئی ہیو ٹو سلیپ اینڈ آئی نو وین آئی ہیو ٹو ویک اپ, لیکن وین آئی ایم ٹریولنگ تو مجھے نیند کی پرواہ نہیں ہوتی, مجھے مطلب بس آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو فن. نور کا میں نے نوٹ کیا جو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, بیکاز شی از اے ویری فن لونگ پرسن. یہ وقت پہ سو جانے والی, سب سے پہلے you were the first person who went to the room because you were like مجھے سونا ہے. ہاں Seriously? and she was the first person جو کہ سو گئی تھی. ایک سیکنڈ رضا, اگلے دن آ کے میں نے 2 پروگرامز میں بیٹھنا تھا, میں اگر سوتی نہیں تو کیا ہوگا. Yeah, but I saw the organized and the punctual part of you because you woke up on time and then you're like Yeah, I cried 3 times a day, I'm sure. but yeah, so that was something I kind of found unexpected. And because of me, you guys got to travel early in the morning to Ushu Forest, yeah, we etc. did. It was Yes. freezing. It was freezing. نہیں اس ٹائم دھوپ تھی نا. میں بھی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں انسٹاگرام پہ, مجھے وہ مل نہیں رہا. شاہ جی ان دونوں کی میں ایک دفعہ ایک پیج ہے انسٹاگرام پہ, میں وہ دیکھ رہا تھا ان ٹریولرس کے لیے, ٹھیک ہے, اور یہ دونوں وہ پیج پہ کافی ایکٹیو, رائٹ. ان کی ایک ویڈیو مجھے ملی, یہ دونوں میڈمز وین کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پہاڑوں میں جا رہی ہے, دونوں چھت پہ بیٹھی ہوئی, تو بڑی مزے کی کہ میں نظر آتی ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو لائک یا کرنے کا کام نہیں ہے, لیکن اوکے یو اونلی لیو ونس. You only live once. اچھا وہاں پر even though it's a little odd to share, جو eventually I got off the چھت of the van, اور اس ٹائم پہ I mean I am good. I mean I'm good with gymnastics, I'm You good were with very jumping. confident with that. Yeah, I jumped back into the window and the 2 people on the top جو کہ اوپر سے یہ اس آئیڈیا میں تھے کہ ہو سکتا ہے اب نور گر جائے. کیچ کرنے کے لیے نہیں کیچ کرنے کے لیے نہیں, کیچ کرنے کے لیے اوپر کیسے کھڑا ہوگا بندہ. ہاں یہ بھی ہے. وہ اس غم میں تھے کہ اگر اس کو اب کچھ ہو جاتا ہے تو اب یہ گاڑی یہیں پہ رکنی ہے, ٹھیک ہے نا. Yeah, they're my kind of people. you know supposition میں تھے, and they watched me go inside the window of the bus.
चलती गाड़ी आप छत से विंडो में गई हो? नहीं नहीं चलती नहीं, अच्छा अच्छा खड़ी सही है, गाड़ी माना, में मैं से समझा मैंने चलती गाड़ी यार। आई सॉर्ट ऑफ जंप्ड इनटू द विंडो ना, हाँ तो वो चीज बहुत ही एक अजीब चीज थी इन सब के लिए कि ये क्या वो मैट्रिक्स वाला सीन हो। वैसे अगर मर्द that's so छत पे true. चढ़ते हैं ना तो ड्राइवर उनको बहुत सारी गालियां देते हैं, लेकिन लड़कियां चढ़ती है तो ड्राइवर भी खुश हो जाता है ना। ड्राइवर जाओ जाओ जी। अच्छा नूर, अभी आपकी बारी आ गई, ठीक है, आप जरा अपने बारे में कुछ बताइए जो कि हमें ना पता हो, व्यूअर्स को ना पता हो। ऐसी ठीक नहीं है वैसे। बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज एटलीस्ट नूर के बारे में ये बात है कि ये सच बोलती है अपने बारे में। आई थिंक ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन मुझे ऐसी बहुत सी कम चीज़ें हैं जो आई एम नॉट ओपन अबाउट, लेकिन ये है कि मेरे मुंह में फ़िल्टर बिल्कुल नहीं है, मेरे मुंह में जो भी आता है मैं बोल देती हूँ, और कुछ हद तक तो ये सबको पता है, इसके अलावा कुछ बताओ जो ना पता हो। तो दैट लीव्स वेरी लिटिल रूम फॉर थिंग्स दैट पीपल डोंट नो अबाउट। मुझे गिबत जो है वो बहुत जहर पसंद है। लगती, अच्छा। जहर लगती है, कोई बात कर रहा होता है तो मैं उल्टा उसकी जो है ना आई स्टार्ट मेकिंग श्योर कि उसके जितने भी ऐब हैं वो सबके सामने आ जाएं। तो आई मीन आई थिंक अगर मुझसे कोई बात बुलवाना चाहे तो कम से कम किसी की गिबत ना करवाए। अच्छा तो आई मीन एनीवे टॉकिंग अबाउट गिबत, something. आप जरा हमें रिदा के बारे में कुछ आदतें इस तरह की बताइए ना जो आपने ट्रैवलिंग में नोटिस की हो, ठीक है, वही ना आप पे भी लाइक करती है, यू गाइस हैव ट्रैवल्ड। एक तो ये काम करती है कि लोगों का बिन बुलाया क्या कहते हैं इजाजत के बगैर मोबाइल उठा के उनके अलार्म ऑफ कर देती है, उसके अलावा नो शी वोक मी अप उस्मान। अच्छा जगा दिया था, मैं अलार्म बंद कर दिया तुम्हारा सर। Yes, I in that case फिर मैं तुम पे भी आती हूँ और मुझ पे भी आती हूँ, तो सब्र करो। मैं तो खुली किताब हूँ यार, मैं क्या हुआ है? Rida is very sweet. She has a very एक जो presence of mind होता है ना, इसके आसपास जो भी बंदा बैठा हुआ है, she can tell the mental situation of everyone around them. मुझे एक टाइम पे ब्लूटूथ कनेक्शन मिल गया था। क्या? ब्लूटूथ कनेक्शन जो बस का स्पीकर था, म्यूजिक सिस्टम था एट वन पॉइंट। अब मेरी जो म्यूजिक चॉइस है वो किसी को नहीं पसंद, किसी को नहीं पसंद। हाँ, और आई मीन even then I think she was one of the two people जिनको they were like चलो एंजॉय कर ही लेते हैं। इवन दो जो मेरे साथ बैठे हुए थे they were like खैर है ना प्लीज ना नूर बस ना खैर देखा ना नूर प्लीज। तो अब ये चीज़ जो है आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन अकोमोडेशन में शी इज़ वेरी 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 गुड। हाँ पिक्चर्स एक दफ़ा इसको मौका मिल जाए पिक्चर्स लेने का तो देयर इज दिस अदर फ्रेंड ऑफ माइन जो कि हमारी सीनियर रील थी, खत्म हो आपकी भी जाती सीनियर है। रह चुकी हैं, उसको बहुत आई मीन शी न्यू नो बाउंड्रीज। उसको अगर पिक्चर्स लेने का टाइम मिल जाता होता था ना तो दूसरा बंदा इधर आता था। आई मीन दैट पर्सन वुड बी अप टू देयर नोज। बस ना यार कितनी पिक्चर्स लोगी अपनी शक्ल की। I think she's following into her But footsteps. I never take selfies though. Yeah, they're not Yeah. selfies. Those are not selfies either. Yeah. I agree. I, on the other hand, am into a few small, very scenic shots. मैं ज़्यादा pictures नहीं लेती होती। तो जो खड़ी हो जाती थी गाड़ी अचानक से हर दूसरे stop पे they used to be like pictures of and everybody's the same and I felt like an 80-year-old amongst them. Yeah, she'd sit. ये तो नहीं होते थे। क्या नानी बैठी हुई हूँ उनके बीच में यार, बच्चे हैं and I'm not enjoying the same way. लेकिन मेरे जहन में फिर वो दूसरी औरत आ जाती थी यार, लाइक नहीं नहीं मैंने वो काम नहीं करने। This is what happened. Also, I think overall हाँ, सही है जी आप बात करें। overall she's a nice person to hang out with. She's genuinely sweet. Yes. ये शी इज ट्रू। मैं मोए से ये बात अभी कर रहा था कि यार कितनी बात कर रही है आज, नोटिस किया मैं इसलिए बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था। गुड यार, नजर लगा दो मुझे। वेरी इम्प्रेस्ड, आज पहली बार तुमने इतनी बातें की है। नजर लगा दो तो मुझे। खत्म साहब, मेरे जहन में एक क्वेश्चन है, मैंने कहा आपसे जरा वो करूंगा। आपकी जनरेशन है जी, राइट, उनका
पिशावर स्पेशली जो पिशावरी लोग हैं, राइट, ठीक है, आपके जो लास्ट टाइम आप जब आए थे शो में आपने बताया था कि यू बेसिकली फ्रॉम कोहाट, लेकिन आपका काफी टाइम इधर गुजरा है, तो आपका पिशावर के साथ बहुत प्यार है ना, तो अगर पिशावरी ही अगर हम आपको उस तरह कंसिडर करें ना, तो आपकी जनरेशन का अपना एक पिशावर के साथ एक लगाव है, जो उसकी हिस्टोरिकल जगह निक्के दे पाए हो गए या गोलगढ़, ये बहुत जगह है, मुझे पता भी नहीं है, सॉरी मैं ज्यादा नाम से, आपने हमें एकदम बहुत प्यारी एक सैर भी कराई थी इन सब जगहों की, पता नहीं कुल्फी वाला भी था, और फिर वो क्या कहते हैं, बाजार मिसगरां, बाजार मिसगरा, यस, ठीक है, तो आपका अपना एक प्यार है। बीच में फिर हमें एक स्टेज आ गया था पिशावर की, यूथ बोले स्पेशली मेरी जनरेशन पे, हम थोड़ा सा एक टाइम पे बड़े वो हो गए थे कि नहीं यार ये पिशावर शहर क्या ये वो, और बस नहीं, इस्लामाबाद लाहौर और सारा वो एक आया था, साफ बात है, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दैट जनरेशन, ठीक है, मैं भी उसमें वो करता हूँ। ये ब्रेक, अच्छा सॉरी, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, उसके बाद आते हैं हसन साहब से ये सवाल कंप्लीट करें। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि हम हसन अली शाह साहब के साथ बात कर रहे थे उनके एक्सपीरियंस के बारे में इन टर्म्स ऑफ पीपल बिफोर हिम जिनका काफ़ी यू नो अटैचमेंट थी पेशावर शहर के साथ, पेशावर के कल्चर के साथ, और हम उनसे पूछना चाह रहे थे कि उनकी जो ये अटैचमेंट है वो इन कंपैरिजन टू आजकल की जनरेशन जो कि फिर से एक दफ़ा पेशावर के कल्चर को ओन करना चाह रही है, उसको अपना रही है, उसको यू नो फोर फ्रंट पे लाना चाह रही है, तो उसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ यंगस्टर हैं जिन्होंने अपनी पिशावरी वाइन्स वाले हैं, अभी रिसेंटली मोहसिन अली शाह एक लड़का है, उसने एक गाना भी बनाया हिंदको का, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया, मुख्तलिफ चैनल से आने आया पेशावर दी गली, राइट? जी, पेशावर दी गली। तो उन्होंने एक अपनी कोशिश की और कमाल ये की है कि मुख्तसर से गाने में पेशावर की खूबसूरती हर लिहाज से बताई है, सकाफती लिहाज से या इनकी रिवायती मेहमान नवाजी, इनकी रस्म व रिवाज, इनकी वो आपस में रिश्तेदारियाँ, महल्ले में बैठना, गली कूचों में वो नान भाइयों की दुकानें और मुख्तलिफ हमारे ट्रेडिशनल फूड जो हैं पेशावर के, वो उन्होंने बताए, तो बड़ा अच्छा है ये। अब पता है बदकिस्मती क्या है, हिंद कोवानों की बदकिस्मती मैं बताता हूँ, स्पेशली पेशावरियों की। इन्होंने अपनी वो जो मादरी ज़ुबान है ना, ये जहाँ पे बैठते हैं दो चार बंदे तो आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि यार अपनी माँ बोली छोड़ देती ने थे उर्दू च गल्लां कर दियो, बड़े अफसोस की गल है यार, अपनी शनाख्त छोड़ देती ने, अपने बड़े अपने आबा अजदाद की जड़ी रिवायात वो भूल गए हो, और ख़ुद बच्चों के साथ घर में उर्दू में बात करते हैं। जी, बाहर जब इनके इजलास होते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, किधर शादियों में मिलते हैं, तो यही रोना रोते हैं कि यार देखो यार हमने हिंद को भुला दी, हमारे बाप दादा की ज़ुबान है हिंद को हमने भुला दी। ये अहमद बैठा हुआ है मेरे साथ, इनके जो आबा व अजदाद हैं उनकी एक अलग एक हिस्ट्री है। आप तहसील चले जाएं ना, तहसील, तो वहाँ पे निके पांचे वाले को तो सारे जानते हैं, लेकिन निके पांचे वाले की बिल्कुल बैक पे, उसके साथ फ्रंट पे अली इमाम को खुदा बख्शे, वो ये यहिया खान फैमिली है इनकी, ये कजलबाश है, सरदार खेल कजलबाश पेशावर में सदियों से आबाद है, कोई ईरान से आए हैं, कोई अफगानिस्तान से आए हैं। अब आप निके पांचों वाले की दुकान के साथ चले जाएं तो उससे आपको 3-4 मिनट की दूरी पे अंदर गली में यहिया खान की फैमिली है, उनकी बड़ी बड़ी हवेली हैं, ऑर्चेज हैं, देखें लकड़ी का काम जो उस ज़माने में हुआ है तो आप हैरान रह जाएंगे। अब सेठी हाउस, दलीप कुमार और शाहरुख खान, इससे आगे इनको पता ही नहीं। भाई 50-60 साल से तो हम ये सुन रहे हैं, अभी आने वाली नस्लों को भी यही बताओगे कि दलीप कुमार जुमा गली पैदा होया, शवाली के ताले शाहरुख खान पैदा होया, भाई इससे आगे भी तो जाओ ना। अब काफी लोगों को नहीं पता। देखें पेशावर की जो मिट्टी है ना, ये मर्दम खेज है पेशावर की मिट्टी, यहाँ से ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। मैं खाली शोबिस की बात नहीं करता कि कोई कहे जी शहतबाज का बाप तो थिएटर में काम करता था, खलील खान, अमजद खान नवी कली के था उसका बाप, जिक्रिया खान फिल्म एक नाम उसका जैन था, इससे आगे जाते नहीं है। हाँ, तो अब ये देखें पीरपियाई में, पीरपियाई का एक था गुल हमीद,
जी ये अमजद खान और इनसे बहुत पहले की बात है एक्चुअल चॉकलेट बॉय जी। वो इतना खूबसूरत नौजवान था, उसकी फिल्म and he died रिलीज very हुई young थी yes right बिफोर पार्टीशन, उसकी फिल्म रिलीज हुई थी बिफोर पार्टीशन, ये मैंने पढ़ा था उनके बारे में, बहुत मजे का एक आर्टिकल मैंने कहीं पे पढ़ा था, अभी ज़हन से जी। निकल गया। मैं हैरान और परेशान हो गया था। 1937 38 में उसकी फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम पता क्या था? क्या था? खैबर पास। क्रेजी। खैबर पास उसकी फिल्म का नाम था। ये सारे पेशावर के थे ना लोग। आपका आगा तालिश पेशावर में रहा है काफी अरसा। आपका कवि खान क्वार्टर बिल्डिंग में इसकी हमशीरा का घर था। कवि खान इधर बैंक में मुलाजमत करता था, फलक सैर सन में, कि बिल्कुल सामने गली में जिधर वो पॉलिश वाले भी बैठे, उसको क्वार्टर बिल्डिंग कहते हैं ना। अच्छा। तो वहां पे कवि खान, वहां पे मैंने खुद उसको देखा। इब्राहिम नफीस, वो कराची का एक टेलीविजन का बड़ा सीनियर आर्टिस्ट था, फिल्मों में भी आया था। इब्राहिम नफीस इधर आता था हर साल, उसकी हमशीरा का घर था यहाँ पे। अच्छा, राजेश खन्ना की बात करते हैं। राजेश खन्ना का बाप, Khanna family belongs here as खन्ना well. फैमिली यहाँ पे थी। खन्ना अच्छा, हाउस था। अब ये मुझे नहीं पता। अप्पा सेंटर देखा? अप्पा जी, सेंटर जी, सदर बिल्कुल। रोड पे जी। इसके साथ ही खन्ना हाउस था। बाहर उसके मार्बल की तख्ती लगी हुई थी, खन्ना हाउस। राजेश खन्ना का बाप। राइट। तो मतलब ये कि अब ये जो नई जनरेशन है ना, हमारी पेशावरियों की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने, इनके बड़ों ने भी कुछ नहीं किया। अभी पठानों ने पता क्या किए? जी। पठानों की उन्होंने अपनी हिस्ट्री खुद बनाई। जिधर बैठते हैं कहते हैं रहमान बाबा, खुशहाल खान खटक, अमल खान, दरिया खान। मैं उस जमाने की बात कर रहा हालांकि हूँ। कंट्रोवर्शियल फिगर्स भी हैं ये लोग, जी। लेकिन फिर भी इनको जिस किस्म की वो इज्जत मिलती है, जिस किस्म का वो और देखें स्टेटस मिलता है, हमारे पेशावरियों में उनसे अगर ज्यादा नहीं है तो उनसे कम भी नहीं है टैलेंटेड लोग। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं गुलजी, सर। एग्जैक्टली। जी, जी, आलमी बिल्कुल। शोहरत याफ्ता गुलजी आपका, ये देखें पेशावर का है। आगा जी ये गुल मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिरदौस सिनेमा का मालिक जी। भी रहा एक टाइम में, जी वो पेशावर का है। yes. पतरस बुखारी राइट। फर्स्ट एम्बेसडर और फर्स्ट डिप्लोमेट आपके मुल्क का, राइट। और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में उसका एक अलग नाम है, जी। वो आपके पेशावर के। यहिया खान, आगा जनरल मोहम्मद यहिया खान, ये तो सब लोगों को पता होगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, रऊफ सिमाप, उसकी पोट्री थी शावली की ताल में। और ये मुझे याद है कि आज से 40 साल पहले यहाँ पे फॉरनर्स आते थे उसकी पोट्री में और ख़रीदारी करते थे। उधर बर्तन बनते थे मिट्टी के। अब्दुल रऊफ सिमाप, और तहरीक पाकिस्तान में उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी हुकूमत की तरफ से मिल रहा है। अभी तो उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, इस तरह बेगम राहत आगा, वो तहरीक पाकिस्तान में थी। बेगम सरदार हैदर, जिन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे झंडा लहराया था ब्रिटिश दौर में, ये सब पेशावर के लोग थे। In short, we have not respected our लेकिन नहीं Virsa किया ना, as it's लेकिन supposed to इन्होंने be. इन्होंने तो नहीं किया है ना नहीं। कि आप मुख्तार कह अली नैयर हिंद को मैं बड़ा बहुत शायद बड़ा नाम। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं कि इतना तो नहीं होगा ना, कुछ जगहों पे तो कोशिश चल रही होगी ना। Given that necessary कोशिश importance. कोशिश सिर्फ वाइन्स तक और गानों तक कोशिश नहीं होनी चाहिए ना, आगे भी होनी तो कुछ होना चाहिए। चाहिए ना। अभी आप मुझे, मैं इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में कहता हूँ, किसी दिन आप मेरे साथ पेशावरियों को बिठा दें, राइट। यंगस्टर को भी बिठा दें, और जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको भी बिठा दें, दा गज दा मैदान। शाह जी, अभी आपका एक्सपीरियंस और आपका वो guess टैलेंट, this वो is तो gonna आप be मुकाबला ना something करें, I'm क्या बात gonna कर रहे हैं sit आप? there and watch. भी कह रहा हूँ, जी, जी। जो मेरी उम्र के लोग हैं उनका भी कह रहा हूँ। इस पे काम नहीं चलेगा कि आपने एक पेशावर के बारे में एक तारीख लिख ली है और फर्जी किस्से बीच में डाल दी। ये इस तरह नहीं चलेगा पेशावर की तारीख। पेशावर के लिए अगर काम किए तो डॉक्टर अमजद बुखारी ने किए, राइट। कि वो कितने अरसे से देखें, वहां पे एक सीनियर मोस्ट वो है कार्डियोलॉजिस्ट है, राइट। Yes. उसने आज से 10-15 साल पहले कहा कि यार वो मच्छी हटे में पैदा हुआ था। मच्छी हटा घंटा घर के साथ, मीना बाजार के साथ एक गली है, ये मच्छी पेशावर हटा। के जो नाम है अभी आप शावली कताल और मच्छी हटे, ये बड़े मजे के लगते हैं, बड़े मजे के These are यूनिक नाम है। हाँ, तो you वो know, मच्छी हटे में things रहता है, और वो co-relevant. सीनियर मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है। उसकी अपनी जाती रिहाइशगाह है। जो भी पेशावर से जाता है तो उसने अपने घर में पीड़े रखे हुए हैं, तख्तापोश रखा हुआ है, समावार रखी हुई है, बलगमी प्यालियां, ममंदों वाली चैनकें रखी हुई हैं। तो उसने अपने घर में ये माहौल बनाया हुआ है। वो जब आया था 10-15 साल पहले, उसने कहा कि यार मैं पेशावर के बारे में एक किताब लिखना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने किताब तो उसको किताब लिखने में मदद तो दी, लेकिन उसको ठगा भी बहुत। तो उसने फिर एक दिन मुझे मिला तो मुझे उसने गिला भी किया। उसने एक किताब लिखी,
یک शेर आरज़ू, और दूसरी किताब उसने लिखी चित्रा आला कटोरा। चित्रा आला कटोरा मसलन एक ये बाजार मिसगरा में ये ब्रास मास्टर होते थे, ख्वाजा सफर अली, ख्वाजा अख्तर अली, अभी रिसेंटली ख्वाजा सफर अली की डेथ हुई। वो स्कूल टीचर भी थे, ज़की रहमान साहब की भी टीचर थे। तो चित्रा आला कटोरा उसको कहते हैं कि मेस के ब्रास का एक कटोरा जिसमें पानी आप पीती हो। अच्छा अच्छा, ये तो उसमें उन्होंने काम वो होता है जी उस पे हाथ किया, तो उसने अपनी किताब का टाइटल लिखा चित्रा आला कटोरा। वो हमारे पास एक पढ़ा मेरी वालिदा। अच्छा फिर That's उन्होंने the one that अच्छा people उन्होंने have दुआएं वगैरह etched on inside, दुआएं वगैरह अंदर से etching हुई होती है ना। जी एम्बॉस हुई होती है आयतें वगैरह बीच में। emboss हुई। exactly, अच्छा you got it देखें, right. अब उसने अमजद बुखारी साहब ने जो किताब लिखी ना, उसकी रिसर्च देखें, उसने पेशावर का कोई मोहल्ला नहीं छोड़ा जिसमें वो जो उस जमाने के जो करेक्टर होते थे, मसलन कोई दरवेश था, कोई सियासतदान था, कोई दुकानदार है, कोई कचालू बेचने वाला है, कोई छोले बेचने वाला, तो उसकी वो आवाजें भी उसने उसमें लिखी थी कि क्या आवाज लगा के बेचता था कचालू। My father calls them dinosaurs. अच्छा कचालू, अब कचालू वाला उसने जिक्र किया हाजी मनान के घर के बाहर सर की गोट पे, एक सर की गेट के बाहर कचालू एक बेचता था। तो उसने उसमें लिखा हुआ है कि वो कचालू बेचने के लिए आवाज पता क्या लगाता था। उस आदमी को मैंने भी देखा था। तो वो कचालू बेचता था और आपको प्लास्टिक की पिरज में कचालू जब देता था ना, तो हाथ से अपनी अपनी तैयार करदा चटनी इस तरह हाथ से इस तरह करता था। अच्छा और उसके साथ आपको स्टिक देता था, जो आजकल आप उसके लिए इस्तेमाल टूथपेस्ट, वो उसमें इस तरह लगा के आपको देता, तो आप कचालू उस तरह खाते थे। और वो पता कचालू बेचते वक्त आवाज क्या लगाता था जी, खापेड़े। राइट। आप गुजरते थे ना तो गाहक को देखता था ना कि इसकी तवज्जो मेरी तरफ, तो पीछे से आवाज देता खापेड़े। अभी आप कहेंगे क्या कह रहे, कचालू को बोलते हैं खापेड़े। वो कहते थे खा पेड़े, यानी कचालू पेड़ा। अच्छा 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 यानी वो कचालू इस तरह होता था ना कि मलाई की तरह, ये जिस तो तरह एक और पेड़ भी है। चीज हम लोग कह सकते हैं ना कि या तो वो खपेड़ा की तरफ उसकी अर्ज बनाना चाह रहा था, या उसी बंदे को खपेड़ा बुला रहा था। खपेड़े। तो ये उसने फिर यहाँ के वो हर मोहल्ले में एक डिंगा चिब्बा होता था, डिंगा चिब्बा, जिसको आप डिंगा चिब्बा हम यानी बदमाश, वो वाला बदमाश नहीं डंडामारम कि चाकू छुरियों वाला और मंशियात का कारोबार करने वाला हो, वायाती फैलाने वाला जिस तरह आजकल है। उस जमाने में बदमाश अपने मोहल्ले का रखवाला होता था। अच्छा, ओके। वो मोहल्ले में बैठा होता था चारपाई डाल के, हाँ, और सारे मोहल्ले का वो रखवाला होता था। ओके। अगर कोई आउटसाइडर उधर आता था ना, तो उससे वो पूछता था कि भाई यहाँ कितने आया है? इधर इधर नवा आया सोने, उससे पूछता था, लेकिन मोहल्ले का रखवाला था। राइट। हाँ, मोहल्ले की खवातीन गुजर रही हैं, कोई फालतू लड़का खड़ा हुआ है, उसके डर के मारे कोई लड़का खड़ा नहीं होता था। कोई ऊंची आवाज में वायात किस्म की गालम गलोच वो नहीं कर सकता था। तो उस जमाने में पेशावर के हर एक मोहल्ले में एक होता था बदमाश। अच्छा, बेसिकली फ्रेम जोन फॉर लाइफ। विद ड्यू अपॉलॉजीज, लेकिन जो हमारे पेशावर सेंटर के आप बदमाश हैं। आपकी इजाजत के बगैर कोई इधर उधर कोई एक्स्ट्रा बंदा आ ही नहीं सकता। पूछते भी भाई क्या कह रहे हो इधर। कुछ जिम्मेवारी माजरत से वैसी मैं मजाक में थोड़ी सी हाँ, होती कुछ है। जिम्मेवारी ऐसी होती है ना। जी, जी, अब देखें यहाँ पे फीमेल हमारे पास आती है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, इन दोनों का भी बीच में शामिल है नाम। तो वो मैं फिर इसलिए भी मुझे देखना पड़ता है ना। बिल्कुल, अब मेकअप रूम जो हमारा है, उस पे अगर आपको याद हो तो मेरी एक दफा हैदर से आपने फिर हैदर पे गुस्से मुसीबत की थी ना जी, तो मैं इवन मशहर का ये ऑर्डर है कि मेकअप रूम में वो जब मॉनिटरिंग करते हैं, जब मेकअप रूम में वो देखते हैं, आउटसाइडर तो छोड़ें, स्टाफ का कोई आदमी मेकअप रूम में खड़ा है ये तो एकदम टेलीफोन आता है जी, कि ये मोइस क्या कर रहा है मेकअप रूम में, आसिफ अली मैंने क्या किया? आसिफ अली यूसुफ जई क्या कर रहे हैं जी, आसिफ अली यूसुफ जई क्या कर रहे हैं, ये हसन अली शाह क्या कर रहे हैं, सबका पूछ। तो फिर हम उस हिसाब से फिर यहाँ एक माहौल हमने बनाया हुआ, हम कहते हैं फैमिली चैनल। जब ये फैमिली चैनल है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे तो
किसी फीमेल के साथ ना कोई भाई आता है, ना उसकी अम्मी आती है, ना उसका वालिद आता है। आप चले जाएं सरकारी टेलीविजन में, बगैर उनके वालिदैन के, उनके पेरेंट्स के, उनको टेलीविजन में छोड़ते नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। वेरी ट्रू, वेरी नाइस। अच्छा नूर, माय कीटो की एफपीसी इट्स हमारी मोस्टली स्टार्ट हो चुकी है, कुछ नेक्स्ट वीक से हो रही है ज्यादातर, लाइक बेसिकली इट्स ऑन, ठीक है, सीन ऑन है, यस। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, जितना मुझे पता है, राइट, मंडे के दिन 8 to 9 पाकिस्तान लाउंज है जकी भाई का। हम कोशिश करेंगे, जकी भाई कुछ देर अभी कॉल पे भी ले रहे, उनसे ही बातचीत करते हैं कि उनकी शो में क्या होता है। लेकिन ट्यूसडे को आपका होता है पाकिस्तान लाउंज, राइट, नेक्स्ट वीक से हम सारे देख पाएंगे 8 to 9 ट्यूसडे को। हमें जरा थोड़ा सा बताइए कि आपके पाकिस्तान लाउंज में क्या होगा। पाकिस्तान लाउंज में इस दफा आप मुझे भी देखेंगे, सोचिए मुझे सीरियस शो ये लोग दे रहे हैं। अब अगेन आप लोग यही सोचेंगे कि अगर नूर कर रही है शो तो हम भी कर सकते हैं, क्या होगा, है ना, ये तो जहन में आया होगा। तो नहीं मैं बता रही हूँ ना, पहले से प्रिपेयर कर रही हूँ। माई शो इज गोइंग टू बी मच मोर फन कंपेयर टू एवरीबडी एल्सेस। आप क्या कह रही हो कि बाकी शो बोरिंग करेंगे? जकी भाई आप सुन रहे हो, ठीक है? हाँ, दिस इज मार्केटिंग। हाँ मेरा शो जो होगा उसमें इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे लोकल और थोड़े से उससे वाइडर पॉपुलेशन में जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वेदर दे आर सियासी पर्सनालिटीज, वेदर देर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वेदर देर वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज ए सोशल कॉज, तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग बैठ के इंटरव्यूज करेंगे। देयर गोइंग टू बी one-on-one पर्सनल इंटरव्यूज, और इंटरव्यू उनके काम के बारे में नहीं, उनके अपनी ज़ाती लाइफ के बारे में होगा। एंड दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर। हमारे पास एक कॉल है। सरज़की जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, नूर, मोइन, अलीशा साहब, निदा, थैंक यू सो मच जी। जकी भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी हम बात कर रहे थे आपकी शो के हवाले से कुछ देर पहले। हाँ सर, ऑफेंड नहीं होना, मैंने ये नहीं कहा कि आपका सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि नूर ने sorry, बोला है कि I didn't mean चुप that. करो ना। नूर ने बोला है कि मेरा शो बाकियों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, मतलब है इसका कहना है कि जकी भाई आपका शो बहुत बोरिंग होगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, और जरा अपने शो के बारे में हमें बताइए कि उसमें क्या होता है। मेरे वाले शो को बोरिंग नहीं बुलाना जी सर, बिल्कुल। please. उसके बाद मैं बहुत डीप ब्रेथ्स ले रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से गुस्सा ना आए। वो मैं सुन चुका हूँ माशाल्लाह, जब इन्होंने कहा है कि मेरा शो जो होगा वो बाकी शो से अच्छा होगा। तो उस्मान यार अब क्या किया जाए, ये तो काफी बड़ा मसला बन गया। स्पेशली मोहित से मैं पूछूंगा इसका हाल यार, ये तो चैलेंज दे दिया। बिग प्रॉब्लम। चैलेंज नहीं, लाइव क्या कि ये स्क्रीन के ऊपर यस, पंगा ले लिए सर। एग्जैक्टली पंगा ले लिए यार। ये तो ये होगा क्या सर उस्मान? देखिए, मार्केटिंग है ना, तब कुछ तो करूंगी ना। नहीं मार्केटिंग तो है, लेकिन आपने तो होर्डिंग भी नहीं लगाई ना, आपने तो डायरेक्ट लाइव शो में कह दिया बस, जैसे आपने बात खत्म कर दी है कि बाकी तो एम ही है। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, आप लोग सब देखिए, वो कंपैरिजन आप लोग खुद करेंगे कौन सा वाला शो ज्यादा बेहतर, लेकिन मैं बता रही हूँ मेरा वाला ज्यादा बेहतर होगा। अब फिर देखिए, फिर से वही बात। मतलब यार अभी शादी इसके लिए कौन सा मुहावरा होगा? अब मैं सिरज़की के साथ कंपटीशन तो करने से नहीं मैं ये भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये अच्छी बात है। वैसे एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ नूर क्या ये इंथ्यूजियाज्म देखिए कि इतना जबरदस्त इनको कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने कहा है कि भाई मेरा शो अच्छा होगा, और हम चाहते हैं कि इनका शो अच्छा हो। और लेकिन ये है कि जो मंडे का पाकिस्तान लाउंज होगा, दैट विल बी सेकंड टू नन इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे कि हर एक शो अच्छा हो इंशाल्लाह। और आप फिलहाल तो देख रहे हैं ना कि उसमें नूर हम फिलहाल जो है एनवायरनमेंट पे बात कर रहे हैं उसमें, जो दुनिया का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कोई उससे अभी तक समझ नहीं पाया। ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से बात कर रहे हैं और इंटरफेस हार्मनी के हवाले से बात कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि K2 पे ये सीरीज सिर्फ हमारे चैनल पे ही, ये एक बहुत बड़े एक क्रेडिट है कि किसी और चैनल्स पे ये सीरीज नहीं चल रही सिवाय हमारे चैनल पे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो
आने वाले हैं। मैं अभी नहीं बताऊंगा कि उसमें मैं क्या करूंगा, वरना आप कॉपी कर लोगे मुझसे, क्योंकि आपके अभी से इरादे सर वो ठीक तो नहीं मैं है। कर ही नहीं सकती, उससे तो आपने जो है ना मुझे बहुत ही दूर कर दिया है ना। तो आई मीन एज फार एज योर शोज आर कंसर्न, तो वो तो आई मीन डेफिनेटली सेकंड टू नन, एंड द टॉपिक्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो वो भी आप ऐसे कन्वे कर रहे हैं ताकि जो ग्राउंड लेवल पे हमारे लोग हैं उन तक ये बात पहुंच सके, उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जा सके, एंड आई थिंक दैट इन इटसेल्फ यू नो स्टैंड्स इट्स ओन प्लेस। तो अच्छा, डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे कौन से लोग होते हैं? एक तो ग्राउंडेड होते हैं ना। सर सर वो मेरी तरह लोग होते हैं जिनको जो है ना 1 साल बाद बात पता चलती है कि वो लास्ट ईयर एक चीज हुई थी, और वो भी अपने Very चैनल में। थैंक यू सो मच, आपने कॉल ली मेरी, और इंशाल्लाह मैं आपकी सारी टीम, जो इतनी प्यारी यंग टीम है, इनकी अप्रिशिएट करता हूँ, इंक्लूडिंग हसन साहब। मैं कहूँगा कि आप लोग इतना प्यारा शो कर रहे हो और मुझे हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हो। मैं स्पेशली अहमद को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इसका एक शो होता है खैबर न्यूज़ पे, शौक और मशगला। अगर वो हम उसे उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकें तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करेगा इंशाल्लाह। ज़की भाई थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, लेकिन आपने Thank जो you so बात much. की है इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आपको अहमद देने ही वाला है। कीप वॉचिंग द शो जी। थैंक अच्छा यू। चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो दैट इज मंडेज पाकिस्तान लाउंज, और फिर ट्यूसडे पाकिस्तान लाउंज, सॉरी आपकी बात रहती थी। यस खत्म कर दी, कुछ नहीं, अपने शो के बारे में बता जी रहे अपने शो के बारे में बता रहे थे ना, पाकिस्तान लाउंज आप लोगों के साथ नॉन प्रोफेशनल नो एक्सक्यूज मी, ऐसा मतलब है उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ बेचारे, जिनको आप लोग फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको उनकी काम की वजह से जानते हैं, तो उनको अगर आप एज ए सिंपल ह्यूमन बीइंग आउटसाइड देयर ऑफिस जाने तो वो किस किस्म के बंदे हैं, क्या करते हैं, कभी क्या होर्डिंग्स पे चढ़ते हैं, कभी हैं? हिरन पकड़ते हैं वगैरह वगैरह ना। इस टाइप की उनकी जो हॉबीज होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि They रिसेंटली might बहुत just be part सामने of आ it, रही but है। I'm sure that's not the entire thing always. Unless that's you. That's not me. एक That's बहुत not me फेमस either. हुई थी, हमारे एक बहुत मशहूर पॉलिटिशियन है, वो आई थिंक 1000 रुपए की शर्त लगाई थी उन्हें, ऊपर एक होर्डिंग पे चढ़े थे, फिरते थे, और जी। फिर मेरे ख्याल 5000 रुपए के लिए एक हिरन पकड़ा, हिरन भी पकड़ा था। यस तो या Was he jailed after that? नो ही वाजंट, वो हिरन वो जंगल में नहीं पकड़ी थी। आसिफा नहीं ठीक किया। Oh, वो आगे एक्सप्लेनेशन भी दे रहे कि जबा भी नहीं किया, सिर्फ पकड़ा हुआ था। यस लेकिन एनीवे ये सारे काम उन्होंने उस वक्त नहीं किए जब एमएनए थे, अभी किए। अच्छा खैर एनीवे, तो इस टाइप की आपको उनके साथ पॉलिटिशियंस हो गए और बड़े बड़े लोग हो गए, उनकी And you लाइफ get to know about them. Yes. That is the main bit. एक ऐसी चीज, I mean जो डिसोनेंस होती है, एक जो हम इंसान को एक कैरिकेचर बना देते हैं और उससे वो ह्यूमैनिटी वाला फैक्टर बिल्कुल साइड पे कर देते हैं, वो हमारी कोशिश होगी थोड़ा सा वापस लाने की। नाइसली पुट, वो ह्यूमन एलिमेंट शो करेंगे। Yeah, नाइस humanity to caricature backwards. ओके Yeah, I think that's अच्छा नेक्स्ट हमारे पास वेडनेसडे का एक बहुत मजेदार प्रोग्राम है, एंड उसका नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। 2 आवर्स का प्रोग्राम होगा 9 to 11, और उसका नाम क्या है? नाम क्या है? I was about to say. यार तुम प्रोग्राम में हो मुइज। हाँ 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 वो मुझे पता है प्रोग्राम का नाम यार। मुश्ताक उपखैर, यस दैट्स द नेम ऑफ द शो, एंड वो इसको इसमें चाय पिलाओ। 2-3 कैरेक्टर्स है, सॉरी कैरेक्टर्स नहीं, 2-3 सेगमेंट्स है। वाओ सर। दूसरा वो प्रोग्राम चल रहा था कैरेक्टर्स और सेगमेंट। इसमें 2-3 सेगमेंट्स है, और जो सेगमेंट्स होंगे वो जो लोग प्रेजेंट करेंगे वो खुद उनके बारे में बताएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपने नए शो की, जो कि वेडनेसडे को आप लोग 9 से 11 देखेंगे, जिसका नाम है Yeah, that's how you say it. मेनली होस्टेड बाय मीना, लेकिन मीना अकेली नहीं होगी, उसके साथ एक सपोर्टिंग होस्ट होंगे, एंड उनके अपने मजेदार सेगमेंट है। सबसे पहले जो सेगमेंट है वो है रिदा खालिद का। सो रिदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेगमेंट। अच्छा, मेरा सेगमेंट जो है I'd say कि इट्स लाइक अ शॉर्टर वर्जन ऑफ केपीज ब्लॉग, और Right, केपीज ब्लॉग okay. के बारे में अगर मैं फिर बताऊं तो उसमें मेनली यही था, उसका एम ही यही था कि हमने
KP کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو سامنے لانا ہے. There are a lot of people here who are doing an amazing job. They're doing a lot of work جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا, and we wanted to give them a platform تاکہ وہ آئیں اور اپنا کام پریزنٹ کر سکیں. تو بیسکلی یہی چلے گا کہ ہمارے سیگمنٹ میں ہم ایسے ٹیلنٹڈ یوتھ کے پاس جائیں گے, either they are social media influencers, they're artists, they have their own startups, you know, all the work that they're doing, جو سیلف میڈ لوگ ہیں, جو کہ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں, جو کہ بہت ہی یونیک بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کو ہم سامنے لائیں گے, فور فرنٹ پہ لائیں گے, اور ان کو ہم بیسکلی ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کام آپ سب کو دکھا سکیں. تو دیٹ از وٹ وی آر گونا بی ڈوئنگ ان آور سیگمنٹ. ویری نائس. لیکن ڈیوریشن کتنی ہوگی آپ کے سیگمنٹ کی؟ I believe 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes, yes. I believe ہمارے ساتھ مینا کال پہ ہے. Yes. Hello, السلام علیکم. Hi Meena. السلام, کیا حال ہے عثمان؟ ہیلو نور, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مینا آپ کیسی ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ کیسے ہو؟ Perfectly fine, A1. We are missing you today. لیکن آپ کی کچھ مصروفیات تھی. آپ میں بھی ویورز کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ انہیں جوائن کریں گی ویڈنسڈے کو اوپر خیر پروگرام میں. آپ کا جو پروگرام ہوگا اور اس میں سیگمنٹس ہوں گے رضا کے, معز کے, احمد زاہد کی. اپنے سیگمنٹس کے بارے میں بات کریں گے ابھی, لیکن آپ ذرا بتائیں کہ آپ جب آئیں گی, ٹھیک ہے, آپ کیا پریزنٹ کریں گے ہمیں ویورز کے شو میں؟ ویل, شو تو بڑا ہی زبردست ہوگا انشاءاللہ جب ہم چاروں دوست ایک ساتھ اس میں ہوں گے. لیکن جو میرے حصے میں آئے گا وہ ہوں گے جی مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مہمان ہوں گے, جس میں میل فیمیل مکس ہوں گے, اور تقریباً کوئی 40 سے 35 منٹ کا میرا وہ سیگمنٹ ہوگا, مہمان کے ساتھ لائیو ہوگا. تو آئی ایم شیور کہ وہ بھی بہت اچھا جائے گا انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی, اینڈ آئی ایم شیور, میں تو ایکسائٹیڈ ہوں, ہم سب ایکسائٹیڈ ہیں, آپ بھی ایکسائٹیڈ ہوگی اس کے لیے. ہوں, کیونکہ میں نے کوئی 3-3.5 مہینے میں نے کیٹو کی اسکرین سے میں نے آف لیا ہوا تھا کیونکہ خیبر پہ پروگرامز وغیرہ تھے. تو ابھی انشاءاللہ آفٹر 3 months واپس آؤں گی اور اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کیٹو کی اسکرین. اور واپس آ رہے سے ایک بینگ کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, رائٹ؟ ڈیفینیٹلی, اینڈ آئی ایم شیور ویورز نے جتنا ان کو مس کیا ہوگا وہ بہت انجوائے کریں گے ان کا یہ شو. یس, ایگزیکٹلی. نور کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ I'm good. I miss you. کافی ٹائم ہو گیا, دیکھا بھی نہیں آپ کو, کدھر ہو؟ بلیو کرے میں سب کو صحیح مس کر رہی ہوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے مجھ سے کچھ کھویا ہوا ہے, کچھ گما ہوا ہے. نہیں ایسا بھی اب مت بولو یار, آ جاتی ہوں یار, ٹھیک ہے. I'm not lost. کیا حال ہے ردا, کیسی ہے؟ معز کیسا ہے؟ برابر جی, آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ. انشاءاللہ بہت جلد ایک دوسرے کو ہم جوائن کریں گے وینسڈے کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ مینا. تھینک یو فار کالنگ عثمان. تھینک یو. اچھا, یہ میری بیڈ لک ہے کہ مینا کے لیے میں صحیح پلاننگ کر کے آتا ہوں کیونکہ میرے ایک بدلہ رہتا ہے اس پہ, ٹھیک ہے. ہاں یس, اب کیٹو میرے نے پہلے بھی ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا, جب انہیں انوائٹ کیا تو میں نہیں آ سکا. احمد زاہد اس دن ہوسٹ تھے میری جگہ پہ. پھر ایک اور شو میں بھی انہیں عید شو میں جب آئی تھی, عید شو میں. اب میں مینٹلی صحیح تیار ہوں نا, ٹھیک ہے. میں کہا آپ مینا کے ساتھ تو آج مزہ آئے گا. مینا جب آئی جیسے سیٹ پہ بڑی سخت غصے میں نا, ٹھیک ہو, اتنے غصے میں مینا بیٹھی, میں نے کہا آج چھوڑ دو بھائی, آج چھوڑ دو, تمہیں شو میں سنا دے گی نا. مجھے تو وارن کیا باقاعدہ کہ میرے ساتھ 3 پنچ لے کر. میں نے کہا یار شو تو آلریڈی. تو اس دن بھی آج بھی میں چاہ رہا تھا کہ مینا میں جوائن کرے, میں نے کہا آج بدلہ پورا کر لوں, ٹھیک ہے. وہ میرا ارمان ہی رہ جائے گا. مینا خیر دے. I was like, Meena خیر دے, خیر دے. Chill, Meena, chill. And that was something. I mean, I don't think میں نے مینا کو کبھی اتنا غصے میں دیکھا ہے, لیکن I was like, مینا خیر دے. مینا خیر. And Meena's like very sweet and loving person. اور یہ پروگرام میں انشاءاللہ. And you guys managed to piss her off. No, we didn't. Yeah, you did. I don't know whatever you guys did, لیکن وہ اتنا پسند کرتا ہے. Anyway, we were talking about Rida's segment. So, Rida, yes. ایک question ہے آپ سیگمنٹ کے حوالے سے. 1 سال سے زیادہ چلا ہے KP's Vlog, right? تو ٹھیک ہے یار, پشاور میں there's a lot of talented people, لیکن اتنے زیادہ لوگ آئے آپ کی شو میں, 52 weeks ہوتے ہیں, ہر ایک ویک میں 52 لوگ آ چکے ہیں. کیا اور لوگ آپ اس طرح آپ ڈھونڈ پائیں گی؟ ڈھونڈنے کا مجھے لگتا ہے ضرورت ہے ہی نہیں, because there's so many people out There's there. a mushroom growth of these things out there. Exactly. اچھا.
especially with the rise of जिस तरह social media के platforms को इस्तेमाल किया जा रहा है, we have so many social media influencers जो कि हर दूसरे दिन जो है अपने blog start कर रहे हैं, बल्कि YouTube channel start कर रहे हैं, because now they know the power of social media. So people are realizing it and they're creating their own platforms. So I think कि हर दूसरे दिन जो है कोई नया बंदा सामने आ रहा है, तो ऐसा है ही नहीं कि लोग खत्म हो जाएंगे या नहीं है. Okay, nice. मतलब there is That's a very very big reassuring too. कि बहुत लोग और भी है जिन्हें हाँ आप व्यूअर्स के सामने लेकर आएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनका टैलेंट आप हाईलाइट करेंगे. वेरी नाइस. सो अभी मुइज, उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट आई बिलीव आपका है, राइट? तो टेल अस समथिंग अबाउट योर सेगमेंट. मेरे सेगमेंट में ये है कि मैं जाऊंगा अपनी टीम के साथ, एक बंदे की टीम के साथ. मैं जाऊंगा अपनी टीम के साथ. वन मैन आर्मी. अपनी टीम ना, अपनी टीम के साथ जितने भी हमारे पेशावर में म्यूजिशियन है, बहुत कम है, लेकिन हम उनको ढूंढ रहे हैं. लाइक वी आर डिगिंग देम ऑफ, कि हम उनको पैदा कर रहे हैं. अभी मुझे रिसेंटली कॉल आई है कि यार एक कैफे है जिसमें वो प्रॉपर प्लान कर रहे हैं कि थ्रू आउट यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट है उनको गिग्स के लिए बुलाया जाएगा. बिल्कुल. तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हम जो एक आर्टिस्ट होता है, वो जो लोग जो तमाशे के लिए आते हैं ना, अगर वो ना होना तो वो खत्म हो जाएंगे. तो उनको वो थर्स्ट उनका नहीं बुझता. परफॉर्मर के लिए सारी जो उसकी जो एनर्जी होती है वो ऑडियंस होती है, तो ये बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे लोग. और मैं सबको पेशावर में जितने भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये सब के लिए एक ओपन वो है, इनविटेशन है, आप आ सकते हैं. आपके लिए वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम लगा होगा, म्यूजिशियंस वहाँ पे बैठे होंगे, यू कैन कम एंड परफॉर्म. अच्छा, बेसिकली सेगमेंट इज कॉल्ड द साउंड ऑफ पेशावर, राइट? तो इसमें आपको और भी चीजें आ जाती है ना. एक तो प्रॉपर म्यूजिशियन, जिस तरह हमारे जहन में जो प्रॉपर म्यूजिशियन जिसे हम बोलते हैं ना, एक तो वो हो गया, राइट? लेकिन अब एक दो तीन बंदे हैं जिन्हें मैं बहुत फ्रीक्वेंटली देखता हूँ. इधर एक प्लाजा है हमारा ऑफिस के करीब, उधर एक बंदा बैठा होता है रबाब लेकर, रातों को ज्यादा सर्दियों में बैठ के ही प्लेस द रबाब. ठीक है, लोग आके खड़े हो जाते हैं, देख रहे होते हैं. या इस तरह एक और बाबा है, वो भी इधर यूनिवर्सिटी रोड पे, एक उसके पास वो होता है ये ऑयल का खाली डब्बा जो होता है ना, वो होता है, और साथ पे पता नहीं एक और पॉट से उसने उल्टा किया होता है, उस पे वो प्ले कर, पूरा बाबा है उस पे प्ले कर रहा होता है. वो बहुत मजे का म्यूजिक प्ले करता है. पर्सन ऑन अरबाब रोड जो कि अंडरपास के सामने बैठते होते हैं, एंड ही इज अ वेरी ओल्ड पर्सन, लेकिन ही इज अ खाना बदोश, राइट? एंड he has जो उल्टा किया हुआ होता है, जो बनास्पति का प्लास्टिक वाला जो गैलन होता है, he uses that, उससे म्यूजिक बनाते हैं, उससे म्यूजिक बनाता है. एंड he has an empty canister जो जाम हम कहते हैं, जासे वाला जाम जो होता है, उसको उल्टा करके he has this specific beat जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है. और साथ वो गाते भी है ना, कुछ ना कुछ गा भी रहे होते हैं. This one does not sing. अच्छा, okay. This one does not sing. He doesn't have anything else to do. वो सिर्फ बीच रास्ते में बैठ के ये म्यूजिक बजाते हैं. बीच रास्ते में नहीं, थोड़ा साइड पे होगा. नहीं, वो बीच रास्ते में बैठ के बजाते हैं. उनको कोई कुछ नहीं कह सकता. And I saved this bit for the last because that's the unique thing that he's known about. Okay. He's not mentally well. अच्छा. And he has a certain. But he performs music वहाँ पे. He performs music and it's such a significantly different beat कि उसकी वजह से वो जाने जाते हैं. I have a video of him, मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी. और एक और मैं ऐड करूँ, पेशावर में जितने पेशावर में लोग रहते हैं उन्हें पता है कि पेशावर सदर में वो एक स्पेसिफिक चौक है जहाँ पे वो ढोल वाले खड़े होते हैं, वो येलो ने वो शर्ट्स पहनी होती है, हर कोई जानता है उन्हें, ठीक है, और वो बड़े मजे को उधर से वो कभी कभार और वहाँ पे खड़े के बजा भी रहे होते हैं ना ढोल, जब आप वहाँ से गुजर रहे होते हैं. वो जिसके घर में बेचारे के घर में मैयत भी होती है, उनको भी कहते हैं हाँ बस इतने पैसे, आओ चलते हैं, ये वो लाइक हर किसी को बोलते हैं ना. जो कोई गुजरता है, यार हमें साथ ले जाओ, हम वो करते हैं. यार हम किस तुम किस. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि these are also the sounds of Peshawar. तो आई अज्यूम आप इन्हें भी टच करोगे साथ साथ. Not exactly sound of Peshawar, ये पंजाबी वो है. पेशावर में साउंड That's a Pushtun ढोल. What are you even saying? नहीं, बहुत से ऐसे ढोल वाले जो पश्तो के बीट्स नहीं बजा पाते.
یہ بھی کلیئر کرنا ہوگا کہ کچھ ایسے انسٹرومنٹ ہے جس پہ پشتو نہیں بچتا اور کچھ ایسے بھی انسٹرومنٹ ہے جس پہ پشتو نہیں بچتا پھر بھی لوگ دیکھیں پشاور میں شروع سے ان کو بھی پتہ ہے، احمد کو بھی پتہ ہے، ان کے علاقے سے گزر کے وہ گھنٹہ گھر کے پاس بلاخانے ہوتے تھے، دونوں طرف بلاخانے ہوتے تھے. پتہ ہے جاوید اختر کا بلاخانہ ہوتا تھا یہاں پہ، غلام علی، چراغ علی، نجف علی، یہ 3-4 بھائی تھے. غلام علی ایکارڈین بجاتا تھا اور دوسرا کوئی بھی پورے خیبر پختونخوا میں ایکارڈین بجانے والا نہیں تھا. اور یہاں پہ بینڈ، یہ جو شادی بیاہ پہ جو بینڈ پارٹی ہے نا، یہ بھی یہاں پہ گھنٹہ گھر، اور سارے پنجاب سے آئیں. اور آپ کے جو پشتون تھے نا ہنرمند، ڈھول سرنے بجانے والے، یہ ڈبگری میں ان کے بلاخانے ہوتے. یہاں پہ خیال محمد صاحب بیٹھتے تھے، شاہ ولی بیٹھتا تھا یہاں پہ، اس طرح گلریز تبسم بیٹھتا تھا یہاں پہ، رفیق شنواری صاحب یہاں پہ بیٹھتے تھے. پٹھان، یہ جو پختون تھے نا ہنرمند، یہ ڈبگری بازار میں تھے ان کے بلاخانے. اور گھنٹہ گھر کے دونوں جانب یہ سارے پتہ نہیں کس زمانے میں یہاں پہ ہجرت کر کے آئے ہیں پشاور. یہ لوگ پٹھان خان تھا، پٹھان خان. ایک پٹھان خان تو وہ تھا نا جو میرا ہجر بھی تو میرا عشق بھی تو، وہ نہیں. ایک دوسرا پشاور خان سوری، یہ اس کی اولاد میں سے تھے یہ لوگ. تو پشاور میں شروع سے یہاں پہ ہندکو والے کوئی نہیں تھے. نعت خوان تھے، غلام حسن، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، غلام حسن نعت خوان تھا. بھائی گام، غلام رسول قوال تھے. شاہ جی سوری، میں آپ کی تھوڑی سی بات یہاں پہ کاٹوں گا، ادھر سے کنٹینیو کریں گے. اس شو کے سیگمنٹس تھوڑے سے رہتے او بخیر کے، اٹس 2 آور شو. لیکن ہمارے پاس فرائیڈے کو ایک اور پاکستان لاؤنج ہے جو کہ رفت اور اکزئی صاحب ہوسٹ کرتے ہیں. وہ ہمارے پاس لائن پہ موجود ہے، تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا ان سے اس سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے سر آپ رفت صاحب؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت. بس میں آپ لوگ پروگرام دیکھ رہا ہوں. Thank you very much, and thank you as well for joining us on the show. رفت صاحب، فرائیڈے کو K2 پہ آپ کا پروگرام ہوا کرے گا پاکستان لاؤنج. ہمیں آڈینس کو ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کا کیا تھیم ہوگا، کیا ہوگا اس میں، کیا چیز آپ پریزنٹ کریں گے ویورز کو. اصل میں یہ میرا جو پروگرام ہے یہ تو کرنٹ افیئر کا شو ہے. جی جی. تو جیسے یعنی حالات حاضرہ کا پروگرام ہے، یہ پیورلی سیاسی نوعیت کا ہے. تو اس میں ہم اکثر کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے کے پی کی ایشوز ہے ان کو ہم مین اسٹریم کریں. یعنی اب جیسے خیبر ٹی وی ہے، خیبر ٹی وی یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا لوکلائز اس کا، یعنی اس کے جو ویورز ہے وہ سارے تقریباً پشتو اسپیکنگ مطلب سننے والے یا دیکھنے والے ہیں نا. تو جو K2 ہے وہ نیشنل چینل ہے. اور یہ جو ہے نا آپ جیسے مطلب نیشنل میڈیا میں آپ دیگر چینلز ہے جیسے جیو ہے، جیسے باقی چینلز ہے، ایئر وائی ہے، تو یہ اسی طرح کا چینل ہے. تو ہم یہاں کے پی کی ایشوز یا جو ہمارے ٹرائبل بیلٹ کی ایشوز ہے یا جو ہمارے پڑوسی ملک افغانستان کی ایشوز ہے، تو ہم ان کو نیشنل میڈیا میں مین اسٹریم کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ مطلب پاکستان کے اندر کوئی، یعنی پشاور کے اندر تو کوئی ایسا چینل نہیں ہے نا. پاکستان میں بھی جو ہے نا دیگر جو چینل ہیں وہ بھی جو ہمارے صوبے کے یا دیگر صوبوں کے جتنی بھی ہیں وہ ان کی ایشوز کو اس طرح مین اسٹریم نہیں کرتے ہیں. تو یہ K2 ٹی وی کا کمال ہے، خیبر ای وی ٹی چینلز کا. یہ جو ہے نا انہوں نے یہ بڑا اچھا ایک اقدام اٹھایا ہے کہ یہاں کی ایشوز جو ہیں ان کو نیشنل میڈیا پہ لے آئیں. تو اس طرح یہ ہم جو ہے نا اس میں زیادہ تر ہمارا مطلب یہ ٹاک شو ہے تو پولیٹیشینس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. اس میں ہم جو ہے مختلف جو سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. ماہرین ہے جیسے افغانستان کے اوپر ماہرین ہیں، تو اگر وہ امریکہ میں بھی ہیں تو ہم نے ایسے شوز بھی کیے جس میں امریکہ سے ہم نے افغانستان کی ماہرین لی ہے، یا جو امریکن پالیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس ریجن میں اب امریکہ کا جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے تو افغانستان سے. تو اس طرح ہم جو ہے نا یہ ہمارا شو نا اس طرح اس کا یہ فارمیٹ ہے. اس میں ہم 1-to-1 انٹرویوز بھی کرتے ہیں. ہم اس میں جو ہے نا 1+3 بھی ہوتا ہے، 1+2 بھی ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کا ہمارا شو ہے. رفت صاحب، بیسیکلی آپ اس علاقے کے ان لوگوں کے مسائل، ان کی آواز آپ نیشنل انٹرنیشنلی آپ پہنچائیں گے. بالکل، یہی ہمارا جو ہے نا مقصد بھی ہے کہ ہم جو یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں اس کو ہم جو ہے نا مین اسٹریم کریں.
بالکل نیشنل میڈیا کے اوپر لے آئیں جو ان کے مسائل ہے. تو اس طرح کوئی بھی میڈیا نہیں کر رہا ہے. تو یہ ہم مطلب کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح جو یہاں کے مسائل ہیں, ان لوگوں کے پرابلمز ہے, وہ ہم مطلب پورے پاکستان میں جو ارباب اختیار ہے ان تک ہم پہنچائیں. Thank you very much Rifat Saab for joining us and we were very excited for your show. Thank you جی. اچھا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ رفت صاحب ہمارے ساتھ پختونخوا ٹائمز وہ کافی عرصہ کرتے آ رہے تھے K2 ٹیلی ویژن پہ, اور ابھی ہی از اے ویری سینئر جرنلسٹ. ابھی ان کا منڈے کو ذکیر رحمان صاحب کا پاکستان لانچ ہوگا, ٹیوزڈے کو نور کا پاکستان لانچ ہوگا, فرائیڈے کو رفت اور اکزئی صاحب کریں گے پاکستان لانچ ہوسٹ, اور بیچ میں ویڈنسڈے کو with a very big dash of entertainment, Rida, Moiz, Ahmed Zahid and Meena آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے in اوپا خیر. اچھا تو that rounds up most of the great transmissions from Peshawar Center. لیکن ہمارے پاس ابھی احمد زاہد کا سیگمنٹ رہتا ہے. احمد, we know about Rida's segment, we know about Moiz's segment, right? So you have to save the special one for the last, isn't it, right? Yeah, I did. Come on, you already know, right? Yeah, okay. So let's say that. آپ کیا پریزنٹ کرو گے؟ عثمان آپ کو پتہ ہے میرا شو ہے رائٹ, شو کو مشغلہ خیبر نیوز پہ بیسیکلی. تو اس میں میں ایسے لوگوں ایسے گیسٹ کو فیچر کرتا ہوں جن کے جو کافی ایکسٹریم لیول تک ان کے شوق ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی ساری آلموسٹ اپنی لائف ہی ڈیڈیکیٹ کی ہوتی ہے شوق کو. بیچ میں نے کافی ڈفرینٹ لوگ فیچر کیے ہیں, تو اس کے اوپر میں ایک اسپیشل پیکیج اپنے K2 کے ویورز کے لیے لے کر آؤں گا. جو میں ادھر فیچر کروں گا اسی گیسٹ کا میں ایک الگ پیکیج بنایا کروں گا. ان کو میں بیچ میں بیسیکلی جو میرے شو میں ایسے لوگ جن کو میں نے فیچر کیا ہے, اس میں ڈفرینٹ لوگوں کے میں نے شوق دیکھے ہیں. فار ایگزامپل کس ٹائپ کے شوق ہوتے ہیں؟ آئرش تھوروبریڈ ہارسز, ٹھیک ہے, جو ڈربی میں بیسیکلی یوز ہوتے ہیں, ڈربی کی ریسنگ, جو ڈربی ریسنگ ہوتی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. پشاور میں دیر از اے فارمر MP سینیٹر اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, ثاقب اللہ خان چمکنی, تو ان کا اپنا تھوروبریڈ ہارسز کا اپنا فارم ہے. سب کچھ پتہ ہے اس کے شو کے بارے میں؟ ہی از دا پروڈیوسر. اچھا پروڈیوسر. تو ان کی طرف جب ہم گئے, جب ہم اپنا شو ریکارڈ کر رہے تھے, تو جب ان کا میں نے شوق دیکھا, پھر انہوں نے اپنے گھر میں جتنا حصہ دیا ہوا تھا, کتنا کافی بڑا ان کا گھر تھا, اس کے ساتھ انہوں نے فارم بھی رکھا ہوا تھا. پھر ساری جتنا بھی مین ورک چاہیے ہوتا ہے, جتنی مین پاور ہوتی ہے, اس کے لیے الگ ٹیمز رکھی ہوئی تھی. تو اس کا جب ان کا میں نے وہ شوق دیکھا, اور جس طرح اپنے وہ گھوڑوں سے پیار کر رہے تھے, جس طرح اپنے بچوں کی طرح انہیں ٹریٹ کر رہے تھے, تو مجھے کافی اچھا لگا, میں بہت امپریس ہوا. ہارسز ہو گئے. اس کے علاوہ ریسنٹلی میں نے اسلام آباد میں ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا. دیر از دس فیملی, آئی کین مینشن دا نیم, دیر از دس راجا فیملی ان اسلام آباد. ان کو بیسیکلی جو شو ہے, وہ شوق ہے, وہ میری طرح ہی گاڑیوں سے ریلیٹڈ, آٹو موبائل جیسے. ان کے پاس ونٹیج, اور ونٹیج کے ساتھ ساتھ ونٹیج کلیکشن گاڑیوں کی ہر ایک بندے نے رکھی ہوتی ہے, مگر واٹس ڈفرنٹ اباؤٹ دیئر کلیکشن از بیسیکلی ونٹیج گاڑیوں کی کلیکشن نہیں رکھی ہوئی تھی. نہیں, میں نے جتنے کلیکٹرز دیکھے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے برو. اب ہم سے مجھے پتا ہے نا کلیکٹرز کا, میں نے ان کی جتنی کلیکشن تھی, اس میں دیر واز سم تھنگ a bit very special about every car of their collection. جس طرح جب بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پہلے دفعہ پرائم منسٹرشپ ان کو ملی, جو ان کی پرسنل یوز میں مرسیڈیز تھی 500 CL, وہ انہوں نے آکشن میں لے کے کھڑی کی ہوئی ہے. اٹس ان pristine condition, 28,000-30,000 kilometers driven, 1996 model. I'm going to stop you right there. You're going to start spoiling it for the viewers. There is a similar person in US who buys property, and he has a similar collection of automobiles, and there is something very specific sentimental value جس کی وجہ سے وہ آٹوموبائل جو ہے وہ اس ویلیو پہ جا کے پہنچی ہوتی ہے. So I think that's very interesting, and I mean keep the wraps for now. Yeah, inshallah. But the first package that I'll be featuring inshallah on K2 will be regarding Russian porcelain Gardner porcelain pottery. Have you guys heard about it? Gardaner کے برتن جو ہوتے ہیں سر جی, Russian dolls کے بارے میں سنا ہے. نہیں Russian porcelain, they are very expensive. ان کی collection میں I know some people in Peshawar جن کے پاس ایسی collection ہے اس کی Russian Gardner کی porcelain, گردنر کہتے ہیں اسے بیسیکلی. پنک بلو کلر کے باؤلز ہوتے ہیں, ٹی سیٹس ہوتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا. پشاور کے کافی گھروں میں ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھے ہوئے. اچھا جی 50 سال پرانے, 60 سال پرانے. سوری میں یہاں پہ کروں گا, یہ رشیا کیا بات ہے, رشین کہہ رہے ہیں نا, رشین پورسلین.
पहले हमारा स्पेशली पेशावर के रशिया के साथ बहुत ज्यादा हमारी वो कल्चरल एक्सचेंज ये जो सेठी हाउस के मालिकान हैं जी, इनका सेंट्रल एशिया में सारे इनका तिजारत का काम करते थे। मुझे एक बहुत मजे की बात पता चली, मैं उस दिन एक रशियन एक बुक पढ़ा था, उसमें एक लफ्ज सामने आया समोवार। हाँ, मैंने भी स्टडी किया, रशिया में समोवार्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं सारे सेंट्रल एशिया में और रशिया में भी, और उसे कहते भी समोवार है, वो अपनी जुबान में भी समोवार बोलते हैं। ये समोवार रशिया में अभी पेशावर के हर कावाखाने में आपको समोवार दिखाई देती जी। अभी जो हम ये प्रोग्राम करते हैं कावाखाना या किस्सा खाने का, उसमें हमने समोवार जो गोल्डन रखी हुई जी, ये समोवार है ना, वही तो ऐसे रशिया में भी, सेंट्रल एशिया तो ठीक है, वो तो जो आइडिया था, लेकिन प्रॉपर रशिया भी एज वेल, राइट? तो वहां पे और लफ्ज भी यही यूज होता है उसके लिए। और गर्देनर की एक खसूसियत ये है कि उसमें जब कोई चीज आप डालते हो ना जिसमें पॉइजन है, पॉइजन कुछ भी हो, तो वो टूट जाता है। सीरियसली जी, स्पेसिफिकली स्पेशली जो काला गर्दन, ब्लैक गर्दनर जो होता है उसकी ये क्वालिटी है, इसी वजह से इट्स वेरी एक्सपेंसिव। उसकी रेप्लिकास भी बहुत है, बहुत फाइन और रेयर कलेक्शन लोगों के पास है। एंड द वन दैट आई एम गोइंग टू फीचर ऑन K2, उसमें जब क्वीन एलिजाबेथ वाज ऑन हर टूर इन पेशावर, उन्होंने लंच उस सेट में उन्होंने खाना खाया था, वो उनके पास घर में पड़ा है। दे बॉट दैट ऑफ इन ऑक्शन एज वेल। एक बात है, आई होप उसको उन्होंने धोया होगा ना? धोया हुआ है, ऑफ कोर्स धोया हुआ है। अभी पेशावर में करते सेलिब्रिटीज वाली चीज कि हाथ में लाके कहते हाथ नहीं दूंगा। देखिए जी, पेशावर में जितनी फैमिलीज है ना जिनके घरों में अभी भी हैं मौजूद जी, अभी इस्तेमाल नहीं होते, अभी डेकोरेशन है जी, एंटीक है। सरदार खेल, कजलबाश, मलक, सेठियान, शिनवारी, अफरीदी, वो जो यहाँ पे आबाद हैं पता नहीं कितने सालों से, कितने सदियों से आबाद, सैयद बुखारी स्पेशली बुखारी फैमिली, सैयद फैमिली, आप जाए ना उनके घरों में तो उन्होंने शोकेस में रखे हुए गर्दनर। मेरे पास हमारे पास घर में एक डिश है, सर्विंग डिश जो होती है, बड़ी वो एंटीक सी उसकी एक फील दी। तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा, तो मैंने कहा ये कब की है? तो उन्होंने बताया कि ये उनके वालिद साहब की शादी की थी, मेरे दादा की शादी की थी, ठीक है। और उसके पीछे जो लोगो था वो उसके मैंने पिक्चर लेके, आजकल तो आप नेट पे वो करो, सर्च कर लिए ना, तो वो जिस कंपनी का था वो लोगो थ्रू आउट अपने चेंज करते रहे थे, लेकिन वो 2 साल तक उनका वो वही लोगो था जो पीछे था। दैट वाज फ्रॉम 1932 to 34। तो 1932 से 34 में वो डिश वो ली गई थी, वो अभी भी एज ए डेकोरेशन पीस अभी पड़ी हुई है। और ये गर्दनर बर्तन का नाम नहीं है, ये गर्दनर फैक्ट्री का नाम है जहाँ पे बनती है ये, जहाँ पे ये बनते हैं जी। ओके, तकरीबन आज से 150 पौने 200 साल पहले ये फैक्ट्री लगाई गई थी। वाओ जी, रशिया में। And Usman, one more thing, the content that you guys are going to see on Shok and Mashghala, वो बहुत exclusive content है। मैं वो everyday जो हर एक की पिकअप्स होती है वो चीज नहीं होती। Like talking about गर्दनर, आपने नहीं देखा होगा पहले किसी ने गर्दनर को फीचर किया, मैंने कभी सुना भी नहीं है पहले। Of course, right? जो कलेक्शन की मैं बात कर रहा था इस्लामाबाद में जो मैंने की थी, वो कलेक्शन आज तक किसी ने नहीं देखी। Not a single photo on social media, no video on YouTube, nothing. अभी they don't even let people see their cars. बैठना, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। हम इसलिए वो मिल्क शेक इतना महंगा था। हम जब एपिसोड रिकॉर्ड करते तो उसके बाद लोग पंजाब, कराची से उनको लोग अप्रोच करते हैं कि हमने भी आपके साथ एपिसोड रिकॉर्ड करना। एग्जैक्टली। तो बहुत ये अभी इसने खोल दिया थोड़ा बहुत कि हम किस चीज पे फ्यूचर में रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। उस्मान, एक और चीज है जिसके बारे में मैं एपिसोड रिकॉर्ड करना चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली जिसकी कलेक्शन होती, it was a wristwatch collection, basically very expensive wristwatch collection. अब ये अहमद की बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में, मुझे पता है वॉचेस का, तो yes please tell us about that. The only hurdle that I faced was जिनकी collection थी, they weren't comfortable कि उन्हें feature किया जाए, because उनकी एक घड़ी जो है it's worth more than 4 to 5 million PKR, तो वो risk नहीं लेना चाहते, and they have got I don't know more than 20 watches. तो छोटी सी ब्रेक ले लेंगे व्यूअर्स के बाद आके। Please don't tell them how many animals are keeping it in their houses. हम बात कर रहे थे अहमद जायद के साथ उनके गर्दनर के सेट के बारे में। मेरा तो गर्दनर का सेट नहीं है। अल्लाह करे हो जाए। Maybe someday you are in a position for that as well. To be very honest, Noor, I won't fancy all this pottery or kuch, or I'd rather collect something else, magar not gardener. Like to me, it's useless. Even though it's sure nobody's gonna actually poison you, but yeah, that's the thing. Or that's the confidence. So yeah, तो उसके बारे में मैंने भी प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में या
the one after that. You know, the fun part is when I look at your shows, जब भी आपके shows वगैरह देखती So हूँ, you really watch my shows? I've watched a few of them, yes. Oh, okay, thank you. And the reason I was about to compliment you was that you have an eye for the different things. Yeah, that's the That's thing. very nice actually. I mean, you and Moiz usually work together, right? Yeah. तो ये है कि I mean थोड़ी बहुत उसका भी दिमाग चलता है, and I mean you've got that eye for a different angle as well. So I think that you know combination. मेरा और मोहित से collaboration since day Yes. one, yeah, it has been really good. हमारा जो पहला show था, मोहित को याद है, good and bad, yeah. अच्छा था, मेरी जो मोहित की chemistry है is good. As long as we both are not like you know getting a burden on each other, we're good to go. इसको मैं day one से जब when I got to record my first show with him being as a producer, तो उससे मैंने पहले दिन से कहा था just focus on the you know production stuff and leave rest to me, क्योंकि मुझे इतना था कि जो गेस्ट को मैं फीचर करता हूँ या जिस किस्म का कंटेंट में लेके आता हूँ उसके पर मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेता हूँ तो मेरी कमांड होती है। तो उसमें मोइस को और चीज़ों की इतनी वरी नहीं करना पड़ता, वो सिर्फ जो उसकी प्री प्रोडक्शन होती है उसी के ऊपर, प्री और पोस्ट दोनों के ऊपर जो होता है मोइस का सारा फोकस होता है और अच्छा होता है। आप लोगों ने अगर एपिसोड देखी हो तो मोइस की क्रिएटिविटी इज आउट ऑफ द बॉक्स। Yes, मोइस की जो promos हैं, especially some of them have that really you know detailed humor content. Exactly. And the way he you know imagines it into the scene is incredibly interesting. I mean अपने ही ऑफिस के बंदों से उसने जो कोविड का प्रोमो कराया था वो देख के मैं जितनी दफा हंसी हूँ उतनी दफा कम है। I mean I could actually watch that for another 500 times और मैं उतनी ही दफा हंसूंगी। Well, in my opinion, to be very honest, I'd rather give all this credit. मोइस acknowledge करे ना करे, लेकिन जिस प्रोड्यूसर के साथ हमने अपनी अप्रेंटिसशिप की हुई है, जिसके साथ हमने थोड़ा बहुत टाइम गुजारा है, आतिफ के साथ, तो I gave all my credit, जो कुछ मैं आज हूँ, I give all my credit to आतिफ, because जब the first time I stood in front of the camera, it was very very hard for me, you know, like जो कुछ मुझे बोलने आता था, I couldn't even talk about that. तो जो courage मेरे अंदर था, जो confidence है, big shout out to Atif. It's whatever I am today, it's because of him. Even though if me and Moiz are sitting together here, it's because of him. That you is already know the amazing. reason, you know. And again, it goes for the platform as well. Yeah, I mean, exactly. if it wasn't for this platform, the three of you couldn't have come together. So again, Exactly, it that's goes how it big is. shout out to the ABT channels for this. और इसके अलावा, I mean, again, when you talk about the collaboration aspect, so I mean, in any case, if you think about it, हमारा जितना भी यहाँ का अमला मैं कह लूँ, Yeah. I mean, when it comes together, it just understands each other, right? Whether it's That's the how it is. admin. थोड़ा सा आजकल जो मुश्किल हमें वो आ रही है सामने कि गर्मियों के दिनों में दिन बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। आज हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की Recording खत्म हो 5 गई और AM, हम थके हुए थे। 5 5 in the बजे morning. सुबह हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और 7 बजे हम जल रहे थे, आखिर था शूट का, तकरीबन एंड हो रहा था। Oh, okay. 7 बजे हम जल रहे थे कि यार खत्म करो इस चीज को, बिकॉज आपको 1-2-3 घंटे चाहिए होते हैं। अगर आप 4 बजे भी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बस 6 बजे अंधेरा हो जाता है, देन वो आपका सारा वो खराब हो जाता है। आजकल सिर्फ सुबह 5 से लेकर 7 या 7:30 बजे तक रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, एंड जो कि मुश्किल भी है उठना और उसको वो करना, क्योंकि टीम को गैदर करना इट्स डिफिकल्ट टास्क। डेफिनेटली पेशावर को जून में जो है ना माइक्रोवेव में रख के भूल जाते हैं, उसको निकाला जाता है अगस्त में, तो बीच में हम लोग जो हो रहा होता है हम लोगों के साथ उसका क्या किया जा सकता है, लेकिन that is something we cannot fight. महदूद वसाइल के बावजूद मसलन इतनी प्रोडक्शन हम यहाँ से तकरीबन 24-25 प्रोग्राम हम दे रहे हैं। सर आई पर्टिकुलरली रिस्पेक्ट दैट। वो महदूद जो वसाइल है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो कंटेंट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जो आइडियाज यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, एंड स्टिल इंक्लूडिंग ऑल ऑफ दैट, जो ड्राइव है, जो अनएंडिंग ड्राइव है लोगों की, तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट्स सुपर कमेंडेबल। और ये मुझे ये पॉजिटिवली इस चीज को लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग हमारी हो रही है ना, लाइक
कम वसाइल में अच्छी चीज। जी तो जब वसाइल कम होंगे तो आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। बेशक। तो जब वसाइल होते तो भाई यहाँ दिमाग ही दिमाग है, क्योंकि आपको कोई मसला फिर नहीं आपकी आता, कमाल ये क्या हुई? फिर उसमें आपकी कमाल क्या हुई? कमाल ये सर, training- कमाल ये हुई कि थोड़े से वसाइल में, थोड़े रिसोर्सेज में जो क्रिएटिविटी प्रोड्यूसर्स हमारे कर रहे हैं, आपको भी पता है, तो वो कमाल है। वो कमाल है जब आपको स्क्रीन पे जब कुछ देखने को मिलता है। आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, आई यूजुअली डोंट डू दैट, मगर मोइस का मेरा होता है कि हम थोड़े बहुत जो शॉट्स हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम देखते हैं साथ साथ कि हमने क्या किया, किस तरह किया। तो जिस लेवल के शॉट्स आज मोइस ने पर्सनली रिकॉर्ड किए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द वे ही इज बीइंग ग्रूम्ड हियर, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स मैन, लाइक इट्स टोटली नेक्स्ट लेवल। के एक बंदा बीइंग अ प्रोड्यूसर, उसके साथ साथ उसके अपने कैमरा स्किल्स भी इतने अच्छे हैं, और उसमें से एक दो शॉट्स ऐसे थे कि इसकी तरफ से काफी तरफ से अप्रेजल मूवीज को आया है। सिर्फ नॉट ओनली व्यूवर्स थे, जितनी मैनेजमेंट थी उन्होंने भी काफी इसको अप्रिशिएट किया उस पे। तो इसी आई गेस इसी कहेंगे कि दैट्स हाउ यू वर्क एफिशिएंटली, राइट? It comes with time, it comes with practice, और साथ ही साथ आई थिंक एक जो आई नीड टू गेट दिस जॉब डन, वो एक एस्पेक्ट है, वो भी साथ साथ ग्रूम होता जा रहा है। तो आई थिंक क्रिएटिविटी तो इसकी हम लोग वो तो डिनाई नहीं कर सकते, वो तो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते ना। अंदर से आपको वो लाइक दिल करता है कि करूं, जुनून है ये काम, तो ये काम है ही जुनून। इसमें ऐसा है कि मेरे बारे में ये है कि अगर मेरे हाथ में कैमरा हो, देन आई जस्ट स्टार्ट दिल से वो करना चाहता हूँ। जब एक कैमरामैन हो तो उसको बताना और उससे वो काम एग्जीक्यूट करवाना और खुद करने में बहुत फर्क है। नहीं, ये बात नहीं है कि हमारे कैमरामैन हमें वो रिजल्ट नहीं देते। ये सामने खड़े हुए हैं। नहीं सर, देखिए ऐसी बात नहीं है। से ये एग्जांपल ये हुआ कि उस्मान ड्राइविंग कर रहा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि इधर मोड़ो, तो ये ज्यादा तेज रिस्पॉन्स होगा कि अगर मैं खुद ही मोड़ लूँ उसको। तो एक मैं उसमें चाहता हूँ कि कैजुअल नहीं चाहिए, तुम ड्राइविंग का साइड से मोइज आके तुम्हारा स्टीयरिंग मोड़ देगा मुफ्त। तो मोइज क्या ये ऐसे कर चुका? मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया यार आपको? नहीं इतना नहीं है, अहमद करता रहता है इस तरह, मोइज ने कभी तक नहीं किया। खैर एनीवे मोइज, यू हैव योर ओन कैमरा, तुम आप इस तरह कुछ कभी रिकॉर्डिंग्स करते भी रहते हो, राइट? तो ये इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल, जो सेगमेंट है तुम्हारा, ठीक है, जो ऊपर खैर में है, इसका तुम खुद ही इस तरह कुछ रिकॉर्ड करोगे या क्या, किस तरह प्लान है? यार लास्ट टाइम मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो हमारे दोस्त वगैरह ने ट्रिप बनाया कि यार हम स्वात जाते हैं, तो उसमें तकरीबन 6 घंटे इधर से स्वात मटा, एंड देन 2 घंटे जीप ड्राइव, फिर उसके बाद 6 घंटे हाइकिंग, और हमने 4-5 दिन रात गुजारने के लिए अपने रोलिंग सैक्स वगैरह पहन के, तो 6 घंटे की हाइकिंग जो है ना पहुंच गई 8-9 घंटे तक, क्योंकि 1-2 कदम लेके वाट लग जाती थी। तो मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने इनको बोला चलो मैं एक एपिसोड रिकॉर्ड कर लूंगा। उस वक्त मेरे साथ ऑन द रोड एक प्रोग्राम था जिसको मैं होस्ट भी कर रहा था और प्रोड्यूस भी कर रहा था, तो मैंने मोबाइल पे वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया। तो वो जो हमारे सीनियर्स हैं उनको पसंद है, उन्होंने बहुत दफा इसको रिपीट चलाया, और मेरी शामत आ गई और मुझे बोला कि आज के बाद मोबाइल में काम कर। तुम भी सीखते, कम से कम ये प्रोडक्शन जो है ना, थोड़ी बहुत सीख के हम लोग भी ये वाले काम कर सकते हैं। फिर हम ट्रैवल भी कर सकेंगे और जो है ना इसके अलावा छुट्टियां भी कर सकेंगे। शाजी, वैसे प्रोग्राम में मुझे एक चीज फील हुई है कि अहमद, आई नो ही ट्रेवल्स, ठीक है, यस, मैं मेंशन नहीं किया, मैंने ट्रैवल करता है, उनका जो नूर करती है, रिदा करती है, आप और मैं ही बस मेरे ख्याल में इधर पिशौर में बंधे हुए, या आप भी चुपके चुपके से मेरे ख्याल में निकल जाते हैं कभी पहाड़ों में, है ना? आप और मैं ही बस इधर हम ट्रैवल करते हैं, आप सफर करते हैं। वेरी नाइसली पुट। आप अगर यहाँ पे ना हो तो फिर हम नहीं कर सकेंगे ना, हमें somebody has to। तो क्या इस बार आप लोग इधर हो, हम ट्रैवल करके आते हैं? शादी क्या ख्याल है? वैगन की छत पे बैठ के ट्रैवलिंग करना वो तो फिर आसान काम है, फिर हम भी ट्रैवल है ना, ये लोग ये संभाले, ठीक है, हम तो मराठ और पति की तरह आते हैं। यस, तो व्यूअर्स, बातें तो हमारी गपशप तो हमारी मुंह पे लगती है।
لیکن جب علاقہ اس طرح ہو نا کالام کا اوشو کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ تو پھر دیکھیں الپوری کی سڑکیں دیکھیں چنار کے درخت دیکھیں پھر اس کے ساتھ دریا دیکھو شاہ جی نے اپنی میں ٹریولنگ ٹھیک ٹھاک کی ہوئی ہے جب ان کے پاس ٹائم ہوتا تھا. باتیں بہت زیادہ ہے نور وی کین کیپ آن ٹاکنگ لیکن آئی بلیو پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو ہے. وی ہیو اے ریئلی ریئلی بیوٹیفل سانگ فار یو گائز. بہت مزے کا ایک سانگ ہے ہماری K2 ٹیلی ویژن کی. ہم اپنے جو سانگز میں سے آپ کے لیے ایک بہت پیارا سا ایک ہم نے ایک پرل چن کے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ہم آپ سے اجازت مانگتے ہیں FPC کے مطابق آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی ٹھیک ہے ان دا کمنگ فیو ویکس. ٹل دین میری طرف سے نور اور اس کی طرف سے اور آپ لوگوں کی بہت بہت شکریہ. ہماری گیسٹ کی طرف سے بھی آپ سے اجازت لیتے ہیں اور آپ جائیے یہ سانگ سنیے.